Hello everyone. Wish you all a very good evening. Hope you all are having a good week going on. And I am Yash Saraf, and I am from the StockEdge data team. And in the today's StockEdge Smart session, we'll be learning about the StockEdge scans, my combination scans, and trending stocks. So basically, in our entire session, we'll have three phases. In the first phase, we'll learn about StockEdge scans, and then we'll have a small Q&A session, and then we'll proceed to my combination scans, where we'll learn how to make combination scans from the scans available in StockEdge, and then in the end we'll learn about trending stocks. And then in the last, I will tell you all that how we can use scans, my combination scans, and trending stocks all in sync together to get some benefit and to get our research method and our analysis journey much more better. Okay. So without wasting any more time, let's proceed with our StockEdge Smart session, and I really hope that I could deliver some learnings to you all. सो यस सो मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि स्टॉकेज इज एन ईओडी प्लेटफॉर्म, फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, if we talk about scans, then market में there are n number of data points, right? There are n number of data points with respect to different categories and domains, and each and every data point or data structure has its own importance. मार्केट में प्राइस एक्शन भी जरूरी है, मार्केट में फंडामेंटल्स भी जरूरी है, मार्केट में टेक्निकल्स भी जरूरी है, मार्केट में कैंडल स्टिक्स भी जरूरी है, डिमांड एंड सप्लाई समझना भी जरूरी है. So in that case, what Stockage introduced was, Stockage was the first one. Let me repeat, Stockage was the first one in the Indian equities market to launch this concept of scans and screeners. So basically, what does it help us? It helps us in screening the 5,000 plus stocks within just clicks with respect to different parameters and sets. So here we have the scans icon in the analytics section of the Stockage. So, like I said, there are n number of data points broad available in the market. So, in Stockage, what we have done is we have categorized all those data points into 7 broad categories. And those 7 broad categories are: first is the price scans, which explains the price action of the market, price actions of the stocks. Then we have volume and delivery. It tells us about the demand and supply of the stocks in the market. Then we have technical scans, in which we'll cover all the technical indicators and technical scans over there. And then we have fundamental scans, which will cover the entire fundamental structure of the stocks. Then we have futures and options scans, strike price option scans. It is related to futures and options, but yes, this data is very critical even for those people who want to track FNO data, and they want to do their analysis in cash market and stocks, right? And then in the last, we have candlestick scans. In candlestick scans is also very powerful, because candlestick in itself is very powerful. So let's start with price scans. So what I will do is I will try to cover all the 7 categories, and I will try to explain you the whole importance of scan section, how to use it, how we can interpret it, and I will give you some good examples of some scans. Obviously, all of these scans are very important, but I will give you some good examples from some of the categories so that you can better understand, right? So here it is. Let's start with price actions. Like I said, price action is very important in the markets. So आप लोग price scans में क्या देख रहे होगे? You will see multiple period and range breakout scans, like previous day breakout, weekly breakout, monthly breakout, 52-week breakout, all-time breakout scans, right? So let's start with weekly breakout scans. So before proceeding further, I will tell you one thing. In Stockage, we try to emphasize a lot in the simplicity, in the on the simplicity context. And why am I saying that? Because it is very important to understand what you are reading, what you are analyzing. So if you will see in Stockage, and if you see all of these scans, all the names of these scans are very self-explanatory. It is very simple to understand. Like for example, close crossing last week high, as you can see in my screen, it is very much clear that it will filter out those stocks that have closed above their crossing, they have crossed above their last week's high and closed above it, right? So it is that simple. So that is why I'm emphasizing on this, because it is important. It is very much important to understand which scan you are referring to and what is the meaning and interpretation of that scan. So let's go inside. That is close crossing last week high. तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं, ये जो डेटा आप लोगों को दिख रहा है, दिस डेटा इज एज ऑन yesterday, that is 18 June 2024.
Today's data will today's EOD will be processed within some time, and you all will receive the EOD push notifications, as you all must be tracking. ठीक है. सो बिफोर प्रोसीडिंग टू द आउटपुट, ठीक है, हम लोग आउटपुट पे जाने के पहले हम लोग स्कैन के जो ये जो स्कैन मॉड्यूल है, जो स्कैन सेक्शन है, हम लोग इसको समझेंगे कि व्हाट आर द फीचर्स वी हैव. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वेन एवर यू विजिट अ स्कैन and if you understand that scan, that is then it is okay. But if by any chance, if you have any doubt regarding the scan or understanding of the scan, then what you need to do is you need to come to the scan and you need to click on this I section. You need to click on this I section. So in this I section, what you will find is you will find the meaning and the significance of scan, what this scan is all about, how does the scan will help you, and what is the importance of this scan. In almost all of these scans, there you will find a short video with the help of which you can better understand the scan, how to use that scan. Okay, let me tell you, in StockEdge we have 450 plus scans, 450 plus advanced scans, out of which 60 to 70% of the scans are totally free, right? That is available to all our users. So please go and check. I'm not saying you can check all these scans, but do give a visit to these scans, and you will find very good scans that might be capable and that might suit your strategies. राइट. सो सबसे पहले हम लोग का था कि हम लोग को लर्न करना है कि व्हाट दिस स्कैन इज ऑल अबाउट, समझना है. सो वी हैव गॉन टू द आई सेक्शन, वी हैव अंडरस्टूड कि दिस इज द मीनिंग, दिस इज द सिग्निफिकेंस, एंड स्टिल इफ इट इज नॉट क्लियर वी कैन सी द वीडियो. ठीक है, ये हो गया इसका पार्ट. अब नाउ आपको ये मेजर स्टॉक्स का फिल्टर दिख रहा होगा, दिस मेजर स्टॉक्स फिल्टर. सो लेट मी टेल यू, मेजर स्टॉक्स इज एन स्टॉक एज इन हाउस फिल्टर. So why major stocks? So first let me tell you what is major stocks. So major stocks is the combined list of top NSE and BSE 500 stocks. I am repeating it again. Major stocks is the combined list of top NSE and BSE 500 stocks. Right? So why we have created this filter? इट इज ऑल बिकॉज कि अगर आप लोग को कभी भी मार्केट का मूड या मार्केट का सेंटिमेंट जानना है, सो वी फील एंड व्हाट वी हैव लर्न थ्रू आउट द इयर्स इज दैट इफ यू ट्राई टू गॉज द सेंटिमेंट ऑफ द टॉप 500 स्टॉक्स, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग है कि मार्केट अभी वीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई दिन मार्केट बहुत ज्यादा भागा हुआ है, तो आपको अगर वो समझना है विदाउट चेकिंग एट द प्राइसेस ऑफ निफ्टी और सेंसेक्स, राइट, व्हाट यू कैन डू इज आप मेजर स्टॉक का किसी भी स्कैन का लिस्ट देख सकते हो. अगर कोई बुलिश स्कैन है, इफ इट इज अ बुलिश स्कैन एंड इफ द लिस्ट इज ह्यूज इन द मेजर स्टॉक्स, दैट मींस कि मार्केट आज ऊपर बंद हुआ है, राइट. व्हाई आई एम सेइंग दैट? बिकॉज ऑब्वियसली इफ द निफ्टी इज in a bullish zone, then obviously the major stocks will perform well. The top 500 stocks will perform pehle, will perform better than the rest of the stocks. That is why you will see that the list is huge. Like for example, it is as well yesterday. आप देखोगे इतने सारे स्टॉक्स हैं आउट ऑफ दिस 500 स्टॉक्स जिन्होंने अपना लास्ट वीक का हाई को क्रॉस करके कल ऊपर में क्लोजिंग दिया, राइट. दिस इज ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मेजर स्टॉक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली, अब अगर हम लोग आते हैं बाकी फिल्टर्स पे, सो व्हाट वी इन स्टॉकेज वी प्रोवाइड दिस एडवांस फिल्टर सेक्शन, जिसमें मेजर स्टॉक्स पे नहीं मतलब और भी बहुत सारी चीजों पे फिल्टर कर सकते हो. फॉर एग्जांपल एनएससी स्टॉक्स, बीएससी स्टॉक्स. अगर आपको सारे स्टॉक्स का लिस्ट देखना है, देन यू कैन क्लिक ऑन ऑल स्टॉक्स. वी हैव एनएससी एफएनओ स्टॉक्स. If you want to only filter out futures and option stocks, then you can apply the filter of NSE FO. For all those people or new traders or new investors out there, many people try to only track and trade or invest in Nifty 50 stocks or Nifty 500 stocks or Nifty 200 stocks. Then they can apply this filter and फिर उनका जो range होगा that will be more reduced. और even if you feel कि अभी PSU stocks काफी ज्यादा limelight में हैं, then you can apply the filter of PSU stocks as well. दिस वॉज माई इंपॉर्टेंस. फिर आप प्राइस फिल्टर्स लगा सकते हो कि आपको 10 रुपए के नीचे का पेनी स्टॉक फिल्टर करना है, कि 1000 एंड अबव का स्टॉक फिल्टर चाहिए, या ₹100 to 1000 के बीच का स्टॉक चाहिए. देन वी हैव अ फिल्टर ऑफ कैटेगरी, दैट इज लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप. यू कैन फिल्टर the list or the scan list on the basis of market cap category as well. Then we have market cap, actual market cap filter, by means कि अगर आपको एकदम small cap stocks चाहिए that is below 100 crore, और आपको 100 करोड़ से 100,000 करोड़ चाहिए, या आपको 10,000 करोड़ एंड अबव चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली मार्केट कैप का फिल्टर लगा सकते हो. एंड हेयर कम्स दी पीपल फॉर हु आर इनटू सेक्टरल इन्वेस्टिंग. दैट मीन्स कि आप सेक्टर के बेसिस पे फिल्टर कर सकते हो, कि जो भी हम लोग के प्लेटफॉर्म पे जो 45 सेक्टर है, आप उसमें से कोई भी एक सेक्टर का फिल्टर लगा सकते हो, एंड उसके बेसिस पे यू कैन फिल्टर डाउन दी स्टॉक्स. ठीक है. So this was about the advanced filter section.
Now we have the download button as well, from wherein you can download the section, download this entire list based on your current applied filters. अगर आपने निफ्टी 50 का फिल्टर लगा के रखा है, तो निफ्टी 50 का फिल्टर के साथ जो स्टॉक्स आएंगी वो स्टॉक्स आपकी डाउनलोड हो जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 50 में इतने सारे स्टॉक्स है. सेम वे में अगर मेजर स्टॉक्स का फिल्टर अप्लाइड है, तो मेजर स्टॉक्स का जो लिस्ट होगा दैट विल गेट डाउनलोडेड इफ यू ट्राई टू डाउनलोड द entire list. So download this list will get downloaded in a CSV format, and this is also very helpful for those people who want to keep a track or who want to do further analysis or some calculations in there by themselves. So they can do it from the Excel stuff. अब अब आते हैं बैक टेस्टिंग पे. सो ये जो हम लोग का फीचर है दैट इज कि ये आपको हिस्टोरिक डेटा प्रोवाइड करते हैं ऑफ दोज रेस्पेक्टिव स्कैन्स. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू back test or to check the previous historic data of those scans. For example, obviously, if you come to any scan and if you find that scan very good and if, अगर आपको उसका आउटपुट अच्छा लग रहा है and if you want to explore it more, then what you can do is you can go to the previous dates. For example, आप 7 जून में जाके चेक कर सकते हो कि 7 जून में जो स्टॉक्स आ रही थी वो कैसा परफॉर्म कर रही थी इन द कमिंग वीक. ठीक है. तो उससे क्या होगा, आपको उस स्कैन को लेके योर कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज एंड यू विल बी एबल टू बेटर यूज दैट स्कैन नोइंग हाउ इट इज परफॉर्मिंग. ठीक है. तो अभी हम लोग वापस आ जाते हैं. अब आ जाते हैं हम लोग आउटपुट पे. फॉर एग्जाम्पल, ये स्कैन हम लोग को क्या बताता है? क्लोज क्रॉसिंग लास्ट वीक हाई. दैट मीन्स कि अगर किसी भी स्टॉक ने अपने लास्ट वीक की हाई को नीचे से क्रॉस करके ऊपर में क्लोजिंग दिया है, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्टॉक का लास्ट वीक का हाई वॉज 100 रुपीज एंड वो लास्ट वीक 92 93 समवॉट पे क्लोज हुआ एंड देन फिर मंडे को वो कुछ 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 भागा एंड कल वो 100 के नीचे से क्रॉस करके और दैट वाज सम फ्रॉम 96 97 से क्रॉस करके 100 के ऊपर क्लोजिंग दिया, फॉर एग्जांपल 100 एट 102 और 103, देन दैट स्टॉक विल फिल्टर इन दिस स्कैन. सो व्हाट डज इट टेल्स अस कि ये जो स्कैन्स है इसमें वो सारे स्टॉक्स आ रहे हैं जिन्होंने लास्ट वीक के हाई के लेवल्स पे ब्रेकआउट दिया. दैट इज अ वेरी शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट. ठीक है. तो इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि दीज आर द स्टॉक्स विच आर स्ट्रॉन्ग इन दिस करेंट वीक. ठीक है. इस करंट वीक के अंदर दीज आर द स्टॉक्स विच आर स्ट्रॉन्ग. अब हो सकता है कि कोई स्टॉक हो जो लास्ट वीक हाई, हाँ लास्ट वीक हाई पे भी ब्रेकआउट दिया है, 52 वीक हाई भी ब्रेकआउट दिया है, ऑल टाइम हाई भी ब्रेकआउट दिया है, बट आपको इससे से लास्ट वीक हाई पता चल रहा है. सो व्हाट यू कैन डू दैट, ये हम लोग आगे माई कॉम्बिनेशन स्कैन में सीखेंगे कि यू कैन मेक अ कॉम्बिनेशन स्कैन ऑफ क्लोज क्रॉसिंग लास्ट वीक हाई, क्लोज क्रॉसिंग 52 वीक हाई, क्लोज क्रॉसिंग ऑल टाइम हाई, एंड इन तीनों का कंबाइंड स्कैन निकाल के आप एक कॉम्बो स्कैन चेक कर सकते हो कि ऐसे कौन से स्टॉक थे जो अपना सारा ब्रेकआउट लेवल्स को क्रॉस कर रहे हैं. सो इट कैन बी सीन दैट इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल गार्डन रीच शिप बिल्डर्स. सो बेसिकली गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने कल अपना एक ब्रेकआउट दिया था, अच्छा खासा कल मूव दिया था एंड उसके बाद इस स्टॉक में आज भी इसके अंदर एक छोटा सा अप मूव आया था इन दी इनिशियली इन दी मॉर्निंग एंड देन ऑब्वियसली मार्केट्स करेक्टेड टुडे एंड देन उसके बाद इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आई. राइट. अब वही अगर मैं आपको फैक्ट का दिखाऊं, यू कैन सी इन फैक्ट एज वेल. फैक्ट ने भी कल एक बहुत अच्छा खासा मूवमेंट दिया था एंड देन उस स्टॉक ने आज गैप अप ओपन किया. येस्टरडे दिस स्टॉक ओपन क्लोज्ड एट 866, देन टुडे इट ओपन एट 884, अराउंड 2% का गैप अप मूव हुआ एंड देन उसके बाद दिस स्टॉक मूव टिल 942, दैट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अराउंड 10% मूवमेंट फ्रॉम previous year's close and then उसके बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग है एंड इट क्लोज एट 908, बट स्टिल इट इज अप एट 4.83%. तो अगर आप ऑब्वियसली कल इस स्कैन को अगर आपने चेक किया होता ड्यूरिंग द ईओडी टाइम्स एंड देन उसके बाद दिस वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन द इंट्राडे इटसेल्फ एंड इवन फॉर दिस करंट वीक. ठीक है. सो बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई भी स्टॉक इसके अंदर क्वालिफाई हो रहा है इन दिस स्कैन, देन इट टेल्स अस कि वो जो सारे स्टॉक्स है वो करंट वीक के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोग को यही चीज दिखाऊं, अगर इफ यू गो बैक टू 7 जून फॉर एग्जाम्पल एंड इफ यू चेक कि 7 जून को आईएफएल फाइनेंस आया था, तो 7 जून के बाद दिस स्टॉक हाउ इट हैज परफॉर्म. तो दिस वाज 7 जून. उसके बाद दिस स्टॉक हैज अगेन गिवन अ अप मूव एंड उसके बाद it is consolidating in the same zone, but still this stock has not closed its उस दिन का low, that is 7 day का low. So this stock is still strong until unless it breaks this stock break उस दिन का on 7 June का low. We can check for more stocks. For example, हमारा राजा एनर्जी एंड बैटरी, अब देख सकते हो इसके अंदर भी एक ऑन दी फॉलोइंग डे एक अच्छा खासा अप मूव आया था
which turned out to be a profit booking zone. Then उसके अंदर एक consolidation हुआ, and then this stock is again picking up the momentum. Same way में Praj Industries, यू कैन चेक 7 जून को ब्रेकआउट आया था, एंड देन 7 जून के बाद से ही स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा अपमूव आया, एंड दिस स्टॉक इज इन अ स्ट्रॉन्ग अपमूव सिंस देन, एंड अभी लास्ट 2 दिन से इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है. तो इफ यू चेक आउट द डेट, 7th वाज अ फ्राइडे, देन 8 दिस इज 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, लास्ट वीक पूरा का पूरा ये स्टॉक पूरा स्ट्रॉन्ग अप मूव में रहा. तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, कि आप कोई भी, आप चाहे वीकली स्कैन देखो, क्या मंथली स्कैन देखो, आप जिस पीरियड का स्कैन देख रहे हो, दैट स्टॉक बिकम स्ट्रॉन्ग फॉर दैट पीरियड इटसेल्फ. Obviously, more technicals you will have to check out. You cannot take a trade based on just one indicator or just qualification in one scan. But these scans will help you to filter out stocks. Obviously, entry exit जो strategies होगी, risk reward जो होगा, वो आप लोग का अपना होगा. But stock filter करने के लिए, because it is very, like, it is impossible for each, for any trader or for any investor out there to track a to track all the 5,000 stocks in their one go, and to filter out stocks among them. So that there where this concept of scans come. It helps you in scanning and screening, and then filtering out the top stocks in those respective categories. So I've shown you the importance of back testing as well. I've explained you some this entire scan section as well, and then we'll move forward to बाकी सारे scans. Like for example, we have 52-week breakout, 2-year breakout, 5-year breakout, all-time breakout scans. So आप ये सारे के सारे scans भी देखोगे, सेम पैटर्न है, right? We have somewhat created the same pattern so that it is very easy to understand for all of you. सो इसके अंदर भी क्लोज क्रॉसिंग ऑल टाइम हाई है, ठीक है. सो इस स्कैन के अंदर, इस पर्टिकुलर स्कैन के अंदर वो सारे स्टॉक्स क्वालिफाई हो रहे हैं जिन्होंने अपना लास्ट ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया है नीचे से, एंड हैव मेड अ न्यू ऑल टाइम हाई, एंड अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है, राइट. दैट वाज गार्डन रीच शिप बिल्डर्स. फॉर एग्जांपल, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स का लास्ट ऑल टाइम हाई था 1686.95. yesterday इट क्लोज्ड एट 1847.55, मतलब इसके नीचे से क्रॉस करके इसने ऊपर में क्लोजिंग दिया, राइट. अब 1847.55 पे जब इसने क्लोजिंग दिया आज, कल इस स्टॉक ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया था, दैट वाज 1888, एंड 1847 पे क्लोजिंग दिया. आज इस स्टॉक ने फिर एक नया अपना ऑल टाइम हाई बनाया 1903.50 का, बट उस स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ गई. तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि कई बार क्या होता है कि व्हेन रिटेल पीपल और व्हेन एनी ट्रेडर और इन्वेस्टर ट्राई टू ट्रेड इन ब्रेकआउट स्टॉक्स, लाइक इन दी ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, कि किसी स्टॉक ने अगर कोई ब्रेकआउट दिया किसी लेवल का, से 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, एंड दैट स्टॉक इज इन अ कंटिन्यूअस ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट जोन, कि वो हर दूसरे दिन एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट जोन दे रहा है. तो ट्रेडिंग दो स्टॉक्स और इन्वेस्टिंग इन दो स्टॉक्स becomes very much risky, because why? Because the risk reward ratio इज नॉट फेवरेबल, ठीक है. सो ऑब्वियसली आपको ये चीज चेक करना पड़ेगा कि जो ब्रेकआउट आ रहा है, जो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट आ रहा है, वो कितने स्पैन ऑफ टाइम के बाद आ रहा है. दिस इज अ फ्री एडवाइस, प्लीज नोट दैट, कि आप कभी भी, इफ यू वांट टू ट्रेड ऑन ब्रेकआउट स्टॉक्स, कि किसी भी लेवल से अगर ब्रेकआउट आ रहा है, से 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर और ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, देन यू विल हैव टू चेक कि पहले वाला जो हाई था वो कब था. सो बेसिकली जो ड्यूरेशन होता है ना, द लार्जर द ड्यूरेशन, द लॉन्गर द ड्यूरेशन, the more higher chances of up move is present in the respective stock. अगर यही हो रहा है कि किसी स्टॉक ने अभी 2 दिन पहले ऑल टाइम हाई मारा था, या 1 वीक पहले ऑल टाइम हाई मारा था, एंड आज फिर उस स्टॉक ने एक ऑल टाइम हाई मारा, so obviously there can be chances of up move, right? But the risk reward ratio won't be favorable, and that is the point where retail investors or traders get stuck, because they end up buying at higher prices, and then there's a profit booking correction, and then they get stuck, right? Obviously, if you invest in good fundamental stocks, then obviously prices will return to their levels, but still that opportunity cost is still there. So for those cases, what you all can do is, you can pre-identify. अगर मैं आप लोग को ये बोलूं कि आप लोग pre-identify कर लो कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो 52 वीक हाई ब्रेकआउट देने वाले हैं, या दे सकते हैं, या ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे सकते हैं. तो फॉर कैप्चरिंग आउट दो स्टॉक्स, इसी प्रॉब्लम को केटर करने के लिए,
we identified two scans, that is close within all-time high zone or close entering all-time high zone. So first let me tell you close entering all-time high zone. So what is this zone? ये जो zone है ना, ये आप लोग ये सारे के सारे प्राइस ब्रेकआउट स्टॉक्स में देखोगे, 52 वीक ब्रेकआउट, 2 ईयर, 5 ईयर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट में, ये जोन वर्ड का स्कैन है. So what is this zone all about? So in StockEdge, what we have applied is we have applied a filter of 15% in the zone, विच मीन्स कि अगर किसी स्टॉक का ऑल टाइम हाई इज 100 रुपीज एंड उसका अगर 15% का हाई जोन है, देन उसका 85 से 100 इज ऑल टाइम हाई जोन. सो एज सून एज दैट स्टॉक crosses above 85 and closes above 85, then that stock will set to be entering into its all time high zone. ठीक है. So उससे क्या होगा ना, see for example there are 5,000 plus stocks, and if you come to this scan and if you find out कि there are 20 stocks out of the 500 major stocks जो अपना all time high zone के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, and obviously all 20, there are possibilities if the market is very good and if all the stocks are very good, then there is a possibility then all stocks can make a new all time high. But obviously out of those 20 stocks some stocks will make the all time high. So obviously उन stocks को वो जो 15% का जो जर्नी है, they will have to pass that to make an to make a new all time high. So it is better to enter previously when those stocks has entered into their all time high zone, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और बेटर होगा. अगर आप प्री एम्प्ट कर लोगे कि ये सारे स्टॉक्स है जो आपको लग रहे हैं ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे सकते हैं, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्निकली एंड फंडामेंटली एज वेल, तो आप उसके अंदर अगर आप प्री एंट्री कर लोगे विद इन दैट 15% जोन, सो आपका रिस्क रिवॉर्ड बेटर होगा एंड यू विल बी बेटर एबल टू टाइम योर ट्रेड्स. हो सकता है ब्रेकआउट के बाद आप उसको एग्जिट कर लो या आप उसको ट्रेल कर लो, राइट. आप अपना जो स्टॉप लॉस है, आपका जो रिस्क है, आप उसको और बेटर तरीके से मैनेज कर पाओगे अगर आपका एंट्री बहुत अच्छे जगह पे होगा, राइट. एंड यू वोंट गेट स्टक एट बाइंग एट हायर प्राइसेस. So this is how we can pre-identify those stocks which can give a new all-time high breakout or can give a 52-week high breakout, and same goes for all-time low as well. तो close entering all-time high zone is for those stocks जिन्होंने recently अभी अपना all-time high zone में enter किया है. ना यहाँ पे अगर आप गैप भी देखोगे, you will find the gap कि कौन से स्टॉक्स अपने all-time high से कितने गैप पे हैं. फॉर एग्जाम्पल स्क्रिंडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज जस्ट 7.6% दूर. अगर आप इसका आर्स देखोगे, इस स्टॉक ने आज 2.58% का ऑलरेडी मूव दे चुका है, विच मीन्स कि अपने ऑल टाइम हाई से ओनली 5% दूर है, दैट इज 955, राइट. सो ऐसे ऐसे करके ऑब्वियसली यू विल सी कि ये सारे जो स्टॉक्स है ये टुवर्ड्स, दे आर मूविंग टुवर्ड्स देयर ऑल टाइम हाई. सो ऑब्वियसली देयर वेरी हाई चांसेस कि आउट ऑफ सम ऑफ द स्टॉक्स आउट ऑफ दीज माइट एंड अप गिविंग एन ऑल टाइम ब्रेकआउट. Then we have 1 day, 2 day, 3 day waiver scans. Then we have RS scans. So let me tell you, RS 55-day scans is a very, very strong uh, indicator, and it is created by Vivek Bajaj sir. And if you all must be following him or following him on Twitter or StockEdge Social or watching his YouTube videos, then you all must have heard from him saying about his RS 55 days and RSI model. So he strongly believes in this indicator RS 55 days, and he uses this RS 55 days and RSI indicator का model, combined model, with the help of which he plans his entry and exits in his trades. So he is a very firm and strong believer of RS 55 days. Basically, what does this indicator tells us? कि how the stocks are performing with respect to their benchmark and sector index in a period of 55 days. So why 55 days? Basically कि we try to check the अगर short term के अंदर if that stock is outperforming or underperforming the benchmark index or sector index, then accordingly we can take our trades or we can take our trades in that sector respectively. For example, RS going above zero. ठीक है. So HBL Power Systems का कल के दौरान as on yesterday HBL Power System came to outperform Nifty 50. ठीक है, क्योंकि कल इसने एक अच्छा खासा मूव दिया था. एंड इफ यू चेक टुडे, आज स्टॉक के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आई है. इफ यू चेक मेट्रो ब्रांच, तो मेट्रो ब्रांच के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट स्टिल दिस स्टॉक्स आर स्टिल इन द आउट परफॉर्मिंग जोन. सो ऑब्वियसली यू विल हैव टू चेक. आप अगेन वापस बैक डेट पे जाके चेक कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 14 जून का चेक कर रहा हूँ एंड मैं अगर टीआईसी चेक करूँ, सो सी 14 जून को इसने 6731 पे क्लोजिंग दिया था, एंड देन उस दिन उसने
गैप अप ओपनिंग दिया एंड उसके ऊपर उसने एक अच्छा खासा मूव दिया एंड देन अगेन इट केम डाउन. सो बेसिकली ये जितने भी स्कैन्स है ना, ऑल दी स्कैन्स आर बेस्ड ऑन प्राइस डेटा इटसेल्फ, दी ओएचएलसी इटसेल्फ. सो ऑब्वियसली व्हाट, ये जो प्राइस डेटा से जितने भी स्कैन्स बन रहे हैं, बेसिकली इससे आपको जो एक्चुअल उस स्टॉक का जो स्ट्रेंथ है, जो टेक्निकल ट्रेंड है या जो आपको मोमेंटम, वो आपको वो पता चल जाएगा. राइट, सो इट विल हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द स्टॉक्स मोर, मच मोर बेटर. So this was all about the price scans. Now we have volume and delivery scans. So let's understand the weekly scans. So for example, this. So high trade and delivery quantity this week में इसमें आपको एवरेज डिलीवरी क्वांटिटी दिख रहा होगा, विच इज अ न्यू कॉन्सेप्ट. सो व्हाट इज दिस एवरेज डिलीवरी क्वांटिटी और एवरेज ट्रेडेड क्वांटिटी? सो हम लोग यहाँ पे थ्री स्कैन है, थ्री काइंड ऑफ वॉल्यूम डिलीवरी स्कैन है, दैट इज डेली, वीकली एंड मंथली. सो एवरेज इज द केस ऑफ द रेस्पेक्टिव पीरियड. इफ इट इज अ डेली स्कैन देन द एवरेज इज फॉर 5 days, 5 trading days. If it is a weekly scan then the average is for 5 weeks, and if it's a monthly scan then the average is for 5 months. So basically, short term में that is on a daily basis, ultra short term that is daily basis, quick short term that is weekly basis, and month is for a longer term period. कि आपको अगर consolidation समझना है किसी स्टॉक के अंदर कि हाँ इस स्टॉक के अंदर मूवमेंट चालू हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, then you can check out these scans and you will identify. For example, कालपत्र प्रोजेक्ट्स के अंदर, कालपत्र प्रोजेक्ट्स के अंदर प्रीवियस 5 वीक से एवरेज डिलीवरी क्वांटिटी वाज ओनली 6,93,000. बट सिर्फ 2 दिन के अंदर, लेट मी टेल यू, सिर्फ ट्यूसडे, दैट वाज येस्टरडे ओनली, कल खाली सिर्फ कल इस स्टॉक के अंदर 25,26,000 का डिलीवरी हुआ, विच इज 3.6x ग्रेटर देन दी एवरेज डिलीवरी ऑफ प्रीवियस 5 वीक्स. राइट, तो कल इस स्टॉक के अंदर भले ही स्टॉक कल नीचे गिरा था, बट स्टिल इस स्टॉक के अंदर अच्छी खासी बाइंग हुई है. पीपल हैव बॉट दिस स्टॉक एट द लोअर लेवल्स. तो दिस इज व्हाट टेल्स अबाउट वॉल्यूम एंड डिलीवरी. से आपको उस स्टॉक के बारे में, उस रिस्पेक्टिव स्टॉक के डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलेगा कि पीपल आर मोर कीन टुवर्ड्स बाइंग दैट स्टॉक और पीपल आर मोर कीन टुवर्ड्स सेलिंग दैट स्टॉक. Then we have technical scans. So in technical scans, like I said, there are n number of technical indicators available in the market. And in Socket, we have tried to cover almost all of the important indicators. What we feel कि it is very important for all our users. But still अगर आपको ऐसा लगे कि कोई भी ऐसा स्कैन है या टेक्निकल इंडिकेटर या फंडामेंटल इंडिकेटर है which is not available at the stockage platform, then do reach out to us. Do reach out to our support team and raise a feature request, and we'll surely look into it. And हम लोग देखेंगे कि हम लोग उसको आगे जाके if we can incorporate that respective feature or scan on a StockEdge platform, right? So, like for example, let's start with technical scans. So SMA, EMA, simple moving average scan. So what is SMA? Simple moving average. अगर मैं example लूँ 20 SMA का, so what is 20 SMA? 20 SMA is the closing, is the average of closing price of last 20 trading days. ठीक है. Same goes with 50 SMA is the average of closing price of last 50 trading days. So basically, when we average out the closing prices, we get to see the trend. We normalize the trend of that respective stock. तो एसएमए एंड ईएमए के अंदर दो कॉन्सेप्ट्स है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वाइडली यूज्ड, दैट इज गोल्डन क्रॉसओवर एंड डेथ क्रॉसओवर. सो व्हाट इज गोल्डन क्रॉसओवर एंड डेथ क्रॉसओवर? So basically 50 SMA crossing 200 SMA from below, and 50 it is the golden crossover, and 50 SMA crossing 200 SMA from above, it is the death crossover. So basically, why golden? Golden crossover is a bullish scan, and death crossover, that is 50 SMA crossing 200 SMA from above. It is a death scan, or it is a bearish scan. So मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, कॉन्सेप्ट हाउ SMA and EMAs वर्क. जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों को बता दूं कि वेन एवर अ स्मॉलर ड्यूरेशन SMA crosses a longer duration SMA or EMA from below, ठीक है, from below, then it is termed as a bullish trend. When a longer duration SMA or EMA crosses uh, the shorter duration SMA or EMA from above, right? From above it crosses, then it is a bearish trend. ठीक है. सो अगर मैं आप लोग को एग्जांपल समझाऊं तो आप 50 SMA क्रॉसिंग 100 SMA फ्रॉम बिलो को भी आप गोल्डन क्रॉसओवर समझ सकते हो. इट इज अ मिनी गोल्डन क्रॉसओवर और यू कैन से. सो मैं बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि ये कैसे काम करता है. सो लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ, ठीक है, मैं आपको डेथ क्रॉसओवर के थ्रू समझाता हूँ. सो एस्टर डीएम हेल्थ केयर मास्टेक लिमिटेड, ठीक है.
राइट। सो इस केस में हम मैं आपको दोनों एग्जांपल समझाऊंगा, गोल्डन क्रॉसओवर एंड डेथ क्रॉसओवर। तो फॉर एग्जांपल ये हम लोग का 5 इयर्स का चार्ट है, एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो ऑलमोस्ट साथ में ही काम कर साथ में ही घूम रहा है। दिस पिंक लाइन इज द SMA 50 एंड द ग्रीन लाइन इज द SMA 200। So this the prices and the SMAs are almost consolidating. That is the reason कि uh, all the lines are very very close to each other. बट अगर आप एट दिस पॉइंट देखोगे, एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है। एट दिस पॉइंट, राइट, ऑन 24 जुलाई 2020 पे गोल्डन क्रॉस ओवर, दैट इज व्हाट डज दैट मीन कि SMA 50 ने SMA 200 को नीचे से ब्रेक किया, विच इज अ गोल्डन क्रॉस ओवर, बुलिश ट्रेंड। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये स्टॉक कहाँ से कहाँ गया है। तो एट दिस पॉइंट it was around uh, it was around 458, right? It was trading at around 458, and then यहाँ पे जाके स्टॉक ने एग्जिट दिया एट दैट पॉइंट व्हेन 50 SMA से वापस 200 SMA के ऊपर से क्रॉस ओवर हुआ, विच इज अ डेथ क्रॉस ओवर, बेरिश क्रॉस ओवर। तो अगर मैं यहाँ का पॉइंट पकड़ूं तो इट वाज ट्रेडिंग एट 2699। सो इट इज क्लियरली अ 6x इंक्रीज, 600% का इंक्रीज हुआ है। दैट इज 2 जून 2022। दैट इज विद इन 2 साल के अंदर 600% स्टॉक ने ग्रो किया है। एंड फिर आप अगर यहाँ पे देखोगे, स्टॉक ने एक डेथ क्रॉस ओवर दिया, विच इज अ बेरिश ट्रेंड। उसके बाद 26-27 से यहाँ पे ये स्टॉक नीचे करेक्ट हुआ है टिल 1716, एंड देन फिर अगेन स्टॉक ने गोल्डन क्रॉस ओवर दिया, एंड देन दिस स्टॉक फ्रॉम 17 to 2056, दिस स्टॉक हैज अगेन मूव टिल 2579। अभी भी स्टॉक के अंदर 20 ऑलमोस्ट 20% का इंक्रीज है, राइट, फ्रॉम द गोल्डन क्रॉसओवर ट्रेंड। सो दैट इज वाई गोल्डन क्रॉसओवर्स ऑफ 50 SMA एंड 200 SMA सो स्ट्रॉन्ग एंड सो वाइडली यूज, बिकॉज ये आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए एंड पोजिशनल ट्रेड्स के लिए, पोजिशनल इन्वेस्टिंग के लिए दिस काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म SMA and EMA scans are very very important. सो दिस वाज अबाउट SMA, देन वी हैव CCI, देन वी हैव RSI। जैसा मैंने पहले बोला, विवेक सर का RS 55 एंड RSI, ये दोनों इंडिकेटर विवेक सर की बहुत काफी ज्यादा फेवरेट है, एंड ही स्ट्रांगली यूजेस बोथ दीज टू इंडिकेटर्स। RSI से भी आपको उस स्टॉक के मोमेंटम के बारे में पता चलता है कि व्हाट दैट स्टॉक इज इट, अगर वो स्टॉक बुलिश मोमेंटम में, बेरिश मोमेंटम में, और वेदर दैट स्टॉक इज ट्रेडिंग इन ओवरबॉट जोन और ओवरसोल्ड जोन। तो आप उसके बेसिस पे, आप RSI के बेसिस पे ये चेक कर सकते हो कि व्हाट इज द ट्रेंड मोमेंटम ऑफ दैट रेस्पेक्टिव स्टॉक। In the recent releases, we have also launched weekly RSI, weekly parabolic star, and weekly super trend scans. So basically, daily जो scans होगी वो हो गई शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब सम शॉर्ट टर्म पीरियड पर। जब वीकली स्कैन्स पे आप जब किसी को ट्रैक रख रहे हो फॉर वीकली RSI, वो वीकली पैराबोलिक स्टार और सुपर ट्रेंड, देन वो थोड़ी और लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए हो गई। सो मैं आप लोगों को सुपर ट्रेंड और पैराबोलिक स्टार समझाता हूँ। सो व्हाट इज सुपर ट्रेंड बेसिकली? सुपर ट्रेंड इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्कैन्स और इंडिकेटर्स फॉर कैचिंग ट्रेंड रिवर्सल्स, कि जब कोई इसकी स्टॉक के अंदर बेरिश से बुलिश हो रहा है या बुलिश से बेरिश हो रहा है। सो हाउ विल आइडेंटिफाई दैट, विल सी। सो सुपर ट्रेंड के अंदर एक्चुअल सिग्नल्स मिलते हैं, बाई एंड सेल सिग्नल्स। फॉर एग्जांपल, इफ आई टेल यू, लेट्स चेक विद सफायर फूड्स इंडिया ओनली। मैं इसका 1 ईयर का टाइम पीरियड लेता हूँ, and then मैं आप लोग को 1 year time period में this stock is almost in a consolidating phase, so this is not a good example. Let me check GNFC. I think this will be a good example. Yeah, somewhat. So basically, what this super trend is, the this red and green line. So whenever this red line is trading above the prices, then it is a red sell signal. And as soon as this red line turns into green and this line comes below the price of the stock, then there's a buy signal generated, right? So if at this point you can see on 25th August 2023, a buy signal was generated in this respective stock, and it moved out till over here. Till यहाँ पे अब इस केस में क्या हुआ, at this point on 21st September, 600 और अराउंड 10% का मूव देने के बाद इस दिन क्लोज हुआ था 568। at this point it was 601, it was almost 5% movement, and इस 5% मूवमेंट के बाद इस स्टॉक ने वापस एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ, right, which was still in, which was a false sell signal, and then again at this point इस स्टॉक के अंदर एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ, दैट इज at the price of 634 levels, and then it moved till 736, that is almost 20% increase। and उसके बाद फिर एक स्टॉक के अंदर सेल सिग्नल जनरेट हुआ, and then we can see कि this stocks have decreased to a max great extent।
So this is how super trend works. Basically आपको super trend के basis पे you will get to know कि when there's a trend reversal happening in the respective stock, either from buy to sell or sell to buy, or you can say either from bullish to bearish or bearish to bullish. Same goes for weekly scans as well. अगर आप super trend का weekly scan भी देखोगे, एग्जाम्पल वीकली में चेंज हुआ है एचडीएफसी बैंक के अंदर, यू कैन सी कि कल इट वाज एज ऑन येस्टरडे, इस स्कैन के अंदर एक वीकली सुपर ट्रेंड सिग्नल चेंज हुआ, दैट इज अ बाई सिग्नल वाज जनरेटेड, एंड आज ही ये स्टॉक 3% का मूव दे दिया, एचडीएफसी बैंक ने 3% का मूव दिया, विच इज कंसिडर्ड वेरी वेरी गुड कि इस स्टॉक ने 3% का मूव दिया है। एज यू कैन सी कि वीकली स्कैन्स कैसे काम करते हैं, राइट? अगर आप आरसीएफ का चेक करोगे, यू कैन चेक दिस स्कैन आउट आउट ओवर हियर। So this was all about the technical scans. Then we have fundamental scans. So in fundamental also what we have, there are multiple broad categories. So what we have done is we have categorized all of them into subcategories like profitability, turnover, solvency, cash flow. So let's understand some of them. So profitability के अंदर you will get all the respective scans or indicators with respect to profitability of the companies, कि whether the companies are generating enough returns or not. So for example, you have ROE scans, high ROE, improved return on equity, ROCE, improved return on capital employed, or net profit growth scans. And in the recent releases, we have also launched these 7 powerful scans, like highest quarterly net profit in last 10 years, highest annual net profit in last 10 years, which says that these are the companies which have reported their highest annual net profit in the last 10 years, which means these stocks are operating, these companies are operating there at are operating at their highest level, at highest efficiency. For example, अगर आप quarterly net profit का बात करोगे, then UCO Bank has reported the highest net profit in last 10 years, that is 40 quarters. In the last 40 quarters, UCO Bank has reported the highest net profit in this year, in this quarter 2024-03, and its previous high was 654 crores, which was in December 2022, and the new high is in the latest quarter 2024-03 with a 3.5x growth. So इससे आपको ये समझ में आएगा कि हाउ दी स्टॉक्स आर परफॉर्मिंग, एंड किसी स्टॉक के अंदर कोई मेजर टर्न अराउंड हुआ है या मेजर चेंज हुआ है। आप टर्न अराउंड स्टोरीज चेक कर सकते हो कि कौन सी स्टॉक्स ऐसी थी जो नेगेटिव, जो लास्ट ईयर तक लॉस रिपोर्ट करी थी, एंड उसके बाद इस कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट करना चालू कर दिया। फॉर एग्जांपल जय बालाजी का चार्ट कुछ अलग ही चार्ट है। इफ यू सी दिस स्टॉक of 100 rupees have moved till 1000 rupees in just 1 year, that is a 10x growth. Then we have consistently increasing. There are many safe investors out there who want to invest in only those stocks who are consistently generating good EPS, consistently generating good EBITDA margins or PAT margins, and for them they can use these kind of scans. Then we have turnover scans. It is totally based on sales. Like I said, highest annual sales, quarterly sales, and consistent sales growth. Then we have solvency scans. These scans are for checking out the leverage of those companies, कि किन companies के अंदर leverage ज्यादा है, leverage कम है, debt बहुत ज्यादा है, debt कम है, and for and etc. Then we have cash flow scans as well. Then we have valuation scans, which are considered to be very very important. अगर आपको PE के basis पे trade करना है कि which are the stocks which are trading at very high PE or low PE or moderate PE, or which are the stocks which are trading above their industry PE or below their industry PE. Then we have high PEG ratio, low PEG ratio, and as you can see the rest of the scans. Then we have dividend scans as well, कि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो लोग अपना एक अच्छा खासा कॉर्पस खाली उन स्टॉक्स में लगाते हैं दैट पे अ hefty dividend amount, that pay consistently dividend amounts, right? So for them these are the very good scans in which you can filter out which are the stocks that consistently pay dividend or pay most of the dividend with a high dividend payout ratio. Then we have efficiency scans. Then we have shareholding scans. In shareholding, you can check out the filter out the stocks on the basis of their shareholding. In which stocks promoters have increased or decreased their shareholding. In which stocks mutual funds or FIs or DIs have increased their or decreased their shareholding. In which stocks insurance companies are increasing or decreasing their shareholding. So accordingly, you can filter out those stocks with these kind of scans. Then we have promoter holding pledge and corporate activity scans. Then we have futures and option scans. In futures and option scans, we have futures open interest, long position, short position, which will tell you कि किन stocks के अंदर
काफी ज्यादा लॉन्ग पोजीशंस बने हैं इन फ्यूचर्स विद रिस्पेक्ट टू द एनालिसिस ऑफ द ओपन इंटरेस्ट डेटा एंड द प्राइस डेटा. सेम गोज बाय स्टॉक. देन वी हैव पीसीआर स्कैन्स कि किस स्टॉक्स के अंदर हाई पीसीआर जनरेट हुए हैं, लो पीसीआर या पीसीआर में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है. Then we have strike price option scans. Strike price options के अंदर index option के अंदर you will get to know the in the strike prices of indexes in जिसके अंदर सबसे ज्यादा कॉल का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, पुट का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है. एंड सेम गोज फॉर दी stock option scans. Then we have candlestick scans. Let me tell you, candlestick scans are also very very important. Candlestick in itself is very important. एक दिन का candle of a or just a candlestick pattern of just 1 day or 2 day can tell you a lot about that stock and the trend of that stock. कि whether the bullish trend will continue or whether there will be a trend reversal, it will turn from bullish to bearish, or it will be a bearish trend. A single candlestick or a combination of 2 to 3 candlesticks can tell you a lot about the respective trend of that respective stocks. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोचिन शिपयार्ड का एग्जाम्पल लूँ, तो आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर एक व्हाइट मारुगुजु बना. देन इस स्टॉक के अंदर आज एक गैप अप ओपनिंग हुई. इट वेंट समथिंग, इट वेंट अपसाइड, एंड देन अगेन देयर वाज अ प्रॉफिट बुकिंग एट दी हायर लेवल्स. ऑब्वियसली द मार्केट्स करेक्टेड टुडे, so there had to be some profit booking, but still आप आईडीएफसी में भी चेक कर सकते हो. आईडीएफसी के अंदर भी आज गैप अप ओपनिंग हुई एंड इट स्टिल वेंट अप, एंड ये आज भी अपने कल के क्लोजिंग से ऊपर ही है. सो आईडीएफसी इज स्टिल स्ट्रॉन्ग, स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग एट द करंट लेवल्स. तो अब कैंडल स्टिक स्कैन्स के थ्रू भी आप कई सारा बुलिश कंटिन्यूएशन रिवर्सल स्टॉक्स पता कर सकते हो या बेरिश कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल स्टॉक्स पता कर सकते हो. So this was all about the scan module. Then we'll have a small Q&A session, and then we'll move forward to the my combination scans. Hi, Yash, Agnes this side. There's a request I'm getting. Okay, if you could kindly go a bit slower and whatever you are explaining, and also to take start taking some questions from the chat box. Okay. Yeah. Okay. आशीष जी, there are multiple scans for swing trading. It basically depends कि what is the definition of swing trading. आप weekly के लिए अगर invest करना चाहते हो, then you can check out the weekly scans. अगर if you want to invest for a monthly period or so, then you can check out the monthly scans. And अगर आपको breakout stocks को trade करना है, then obviously you can check the breakout scans. For example, 52-week breakout, 2 year, 5 year breakout, or all time high breakout in which a further momentum or further upside can be possible. Amit ji, currently we do not have sorting options available in the scan result. But though yes, you can download the respective stocks in your in an Excel format and you can apply the sorting over there. But currently we do not have the sorting option. We have noted down your request for the sorting feature and we'll look into it. सुना जी, मैं आगे वाले टाइम में मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसमें मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलूँ ताकि आप लोग सबको बेटर समझ में आए. दिस लिस्ट विल अपडेट ऑटोमेटिकली. ये जो लिस्ट है ये एवरी ईओडी, दिस लिस्ट गेट्स अपडेटेड ऑन एवरी ईओडी. दैट इज, ये जो लिस्ट है अभी जब आज जब ईओडी हो जाएगी आज की डेटा की, देन वो आज का डेटा उसमें अपडेट हो जाएगा. आशीष जी, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट 3 थिंग्स आर यू टेलिंग अबाउट द ब्रेकआउट स्कैन्स. Please, I cannot discuss respective stocks over here. Vinayak ji, yes, we'll be studying about the combination scans right now. दीपक जी, हाउ टू फाइंड द ब्रेकआउट स्टॉक विच इज ब्रेकिंग लॉन्ग टर्म हाई लाइक 8 to 10 years. उसके लिए आपको स्टॉक के अंदर जाके चेक करना पड़ेगा कि उसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वो कब का था. इफ यू कैन फाइंड आउट द प्रीवियस ऑल टाइम हाई, द डेट ऑफ द प्रीवियस ऑल टाइम हाई और लो इन दैट रेस्पेक्टिव स्टॉक्स टेक्निकल लेवल सेक्शन.
विभूति जी, नो, Altium है is not a free scan. शेख जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड डिलीवरी? सो बेसिकली ट्रेडिंग इज लाइक कि मैं आज बाई कर रहा हूँ एंड मैं उसको आज ही सेल कर दे रहा हूँ, राइट? तो दैट विल कम इनटू माय ट्रेडिंग वॉल्यूम. बट डिलीवरी इज लाइक कि मैंने आज किसी स्टॉक को बाई किया एंड मैं उसको आज सेल नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको अपने घर लेके जा रहा हूँ एंड आई एम टेकिंग दैट स्टॉक इनटू माय डीमैट अकाउंट एंड आई विल कैरी दैट स्टॉक फॉर दी फर्दर ट्रेडिंग सेशंस. सो दैट इज माय डिलीवरी. मैं उस स्टॉक को प्रॉपर पेमेंट करके मैं उसको डिलीवरी परचेज कर रहा हूँ. But चौधरी जी, अगर लास्ट में टाइम बचा देन आई विल शॉर्टली एक्सप्लेन द पीएसआर सेक्शन अगेन. विक्रम जी, yes, this green and red line will come auto. You can also plot this take plot any of the indicator in your respective scans in your respective stocks as well. आप किसी भी स्टॉक के एच चार्ट में जाके आप वहां पे इंडिकेटर्स में सुपर ट्रेंड ऐड कर सकते हो एंड ये उस स्टॉक का वो सुपर ट्रेंड लाइन ऐड हो जाएगा वहां पे. Chaudhary, difference between ROE and ROC is there's nothing like which one is more effective. ROE is more widely used. So ROE बेसिकली ये हो गया कि जो कंपनी की जो इक्विटी है, कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है, मतलब जो शेयर होल्डर्स की जो एक्चुअल वैल्यू, ओनर्स वैल्यू इक्विटी, उस पे कंपनी की कितना रिटर्न जनरेट कर रही है. तो दैट इज ROE. एंड ROC इज कि कंपनी जो इन्वेस्ट करके रखी है अपने बिजनेस के अंदर, जो कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है उसके प्रोजेक्ट्स में, उसके अलग अलग इंडस्ट्री एंड ऑल मैन्युफैक्चरिंग के, उसके उसके इन्वेस्टमेंट की बेसिस पे वो कितना रिटर्न जनरेट कर रही है. संजीव जावेदा जी, मैंने अभी जस्ट ROE ROC का एक एग्जांपल दिया. हम लोग ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड पैराबोलिक सार. पैराबोलिक स्टार का काफी सारे एग्जांपल्स आया हुआ है. सो मैं आप लोगों को एक शॉर्ट में पैराबोलिक स्टार समझाता हूँ. तो बेसिकली दिस इज पैराबोलिक स्टार. पैराबोलिक स्टार भी एक ट्रेंड रिवर्सल स्कैन है. सो पैराबोलिक स्टार का मतलब क्या है? पैराबोलिक स्टॉक एंड रिवर्सल. ठीक है. सो अगर हम लोग किसी भी स्टॉक में देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इरकॉन इंटरनेशनल, ठीक है, तो मैं इसका 1 ईयर का मैं पहले चार्ट प्लॉट कर लेता हूँ. सो ये जो डॉटेड लाइंस जो दिख रही है, ये डॉटेड लाइंस ही पैराबोलिक सार है. सो जब भी ये लाइंस ऊपर में ट्रेड कर रही है प्राइस के, जैसे यहाँ पे प्राइस के ऊपर में ट्रेड कर रही है, देन दैट स्टॉक इज अ बेयरिश जोन. तब वो एक बेयरिश ट्रेंड में है. एज सून एज ये जो लाइंस है ये ऊपर से नीचे आ जाती है, दैट इज इट कम्स बिलो द प्राइस लेवल, देन अ बुलिश reversal trend is triggered. So at this point a bullish trend reversal was triggered at this point. तो जब जब ये डॉटेड लाइंस प्राइसेस के ऊपर है, तब इट द स्टॉक इज सेट टू बी इन अ बेयरिश जोन. जैसे ये डॉटेड लाइंस प्राइसेस के नीचे आ जाती है, एंड देन these stocks are said to be ना बुलिश ट्रेंड. आप देखोगे कि मोस्टली जब भी ऐसा होता है कि कभी भी किसी स्टॉक के अंदर बुलिश रिवर्सल आता है एज पर पैराबोलिक सार, देन उस स्टॉक के अंदर एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो जाता है. फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे चेक करोगे एट दिस लेवल, यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम जनरेट हुआ एंड देन उस स्टॉक के अंदर एक 3 से 4 दिन का एक अच्छा खासा बुलिश अप मूव आया एंड देन दैट स्टॉक स्टार्टेड करेक्टिंग एंड फिर एक स्टॉक के अंदर एक बेरिश मूव आया. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. फॉर एग्जाम्पल यहाँ के अंदर भी क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे एक बुलिश और रिवर्सल आया, ये और डॉट्स ऊपर से नीचे आई एंड देन इस स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा अप मूव आया. फिर यहाँ से एक बेरिश मूव आया, फिर वो स्टॉक यहाँ तक गया, फिर एक बुलिश मूव आया. सो कई बार ऐसा होता है कि व्हेन देयर इज अ स्टॉक शोइंग साइंस ऑफ पैराबोलिक रिवर्सल और बुलिश और बेरिश रिवर्सल, तो मोस्ट ऑफ द टाइम दी सिग्नल इज अ पॉजिटिव वन, सिग्नल इज अ जेनेटिव वन, कि उसके अंदर वो रेस्पेक्टिव मूवमेंट आएगा, या तो बुलिश या तो बेरिश. बट मेनी टाइम्स क्या होता है कि स्टॉक गेट्स इनटू द कंसोलिडेटिंग जोन एंड उसके वजह से क्या होता है कि द स्टॉक्स आर ट्रेडिंग फ्लैट और ट्रेडिंग इन द सेम रेंज, जिसकी वजह से वो बुलिश या बेरिश जोन रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता एंड कुछ टाइम बाद वो जोन वापस से चेंज हो जाता है. तो दिस वाज ऑल अबाउट द पैराबोलिक सार. विक्रम पेरीवाल जी, मैं आप लोगों को ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि किसी भी चार्ट के अंदर अगर मेरे को
कोई भी इंडिकेटर ऐड करना है, फॉर एग्जांपल सुपर ट्रेंड, ठीक है, तो वो कैसे ऐड होगा? आपको आपको जो भी डिफॉल्ट पीरियड है, आप उस डिफॉल्ट पीरियड को सेट कर लो कि आपको कौन से डिफॉल्ट पीरियड पे मतलब आपको कौन सा पीरियड पसंद है। अगर आप 3 मंथ पे करना चाहो 3 मंथ पे कर सकते हो। आपको इस इंडिकेटर बटन पे क्लिक करना है, यू नीड टू क्लिक ऑन दिस इंडिकेटर बटन, एंड देन आपको इस ऐड बटन पे जाना है। मेरा ऑब्वियसली एडेड है सुपर ट्रेंड, तो मैं इसको हटा देता हूँ। आपको इस ऐड बटन पे जाना है। इस ऐड बटन पे जाके इस टेक्निकल सेक्शन के अंदर, इन दिस टेक्निकल सेक्शन यू नीड टू सर्च फॉर सुपर ट्रेंड। फॉर एग्जांपल ट्रेंड इंडिकेटर्स के अंदर है सुपर ट्रेंड। सो आप यहाँ से कोई भी इंडिकेटर को ऐड कर सकते हो परमानेंटली, ठीक है। सो आपने ये सुपर ट्रेंड को क्लिक किया, एंड सुपर ट्रेंड यहाँ पे आप यू कैन सी दैट सुपर ट्रेंड हैज ऑलरेडी गेट सुपर ट्रेंड इज ऑलरेडी प्लॉटेड इन द चार्ट। एंड देन फॉर saving this indicator permanently on your X chart, what you need to do is you need to click on the save button. तो save button click होने से सारा का सारा ऐड हो गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन save the respective template. So let's now move on to the my combination scans. I am sharing the Vivek sir's PDF. I've sent the Vivek sir's combination scan PDF. Can anyone please confirm if they have received the PDF in the chat box? Okay. So the PDF will be shared with you all in the chat box. So let's proceed with the my combination scans. So as you can see in my screen, this is the Vivek Bajaj sir's combination scans PDF. So there are multiple combination scans out there. There are 5 combination scans out there. So we'll understand how to make a combination scan. So we'll start with we'll be making the financial improvement with price action FIPA. We'll be making the FIPA combination scan. So for that, you need what you need to do is you need to go to my StockEdge. Over there, you need to go to my combination scans. And वहां पे जाके यहाँ पे already we have this. Then you need to click on add combination scan. You need to give the name of the respective combination scan, and then you need to click on add, and then you need to click on the respective combination scan. एंड फिर यहाँ पे हम लोग सारे के सारे जो स्कैन है उसको ऐड करना चालू करेंगे, ठीक है। सो पहले हम लोग स्कैन्स देख लेते हैं, व्हाट आर दो स्कैन्स। तो सबसे पहला स्कैन है क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन, इंप्रूव रिटर्न ऑन इक्विटी। सो इफ यू ऑलरेडी नो वेयर दैट स्कैन इज सिचुएटेड, अगर आपको पता है वो स्कैन कहाँ पे है, तो आप डायरेक्टली जाके यहाँ पे ऐड कर सकते हो 52 वीक ब्रेकआउट क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन। और अगर आपको नहीं पता वो स्कैन कहाँ पे है, देन यू कैन जस्ट सर्च द स्कैन नेम, इम्प्रूव रिटर्न ऑन इक्विटी, इम्प्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये मैंने 3 स्कैन ऐड कर दिया। फिर आता है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, एबिटा एंड सेल्स। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, क्वार्टरली एबिटा ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, हाई इंक्रीज इन क्वार्टरली सेल्स ईयर ऑन ईयर। सो ये हम लोग ने 6 स्कैन ऐड कर लिया, एंड द लास्ट स्कैन इज कंसिस्टेंट कैश फ्लो ऑपरेशन। कंसिस्टेंट कैश फ्लो ऑपरेशंस। तो ये हम लोग ने फीफा का, वी हैव एडेड ऑल द 7 स्कैन इन दी फीफा कॉम्बिनेशन स्कैन। सो बिफोर मेकिंग एनी कॉम्बिनेशन स्कैन, please hear it carefully. Before making any combination scan, it is very important to make the objective of creating that scan very clear. You must be knowing for what purpose you need to make that combination scan.
Do you need to make a combination scan for filtering out intraday stock? Do you need to filter out scans for strong fundamentals, with strong operating, or you need to make fundamental scans for swing trading or for long term bets, or you need to make a scan on a sectoral basis or on shareholding basis. So you need to be very clear with the objective of driving that combination scan, क्योंकि इफ यू आर क्लियर विद द ऑब्जेक्टिव, उसके बेसिस पे ही आप स्कैन्स को ऐड करोगे. अगर आपको इंट्राडे का, इफ यू वांट टू फिल्टर आउट इंट्राडे स्टॉक्स, ठीक है, उसमें अगर आप लॉन्ग टर्म स्कैन्स को लगा दोगे, ठीक है, अगर आप उसमें फंडामेंटल स्कैन्स लगा दोगे कि फंडामेंटल स्कैन्स में किसका, कौन सा कंपनी है जो हाईएस्ट एनुअल नेट प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहा है, तो उस केस में आपको जो स्टॉक्स मिलेंगे उसमें आप इंट्राडे नहीं कर पाओगे. दैट लिस्ट विल बी मिसगाइडिंग यू. सो इसीलिए आप किसी भी पर्पस के लिए अगर इफ यू आर मेकिंग कॉम्बिनेशन स्कैन, देन यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि व्हाट दैट स्कैन इज ऑल अबाउट. For example, FIPA, financial improvement with price action. So on what basis Vivek Koja sir would have added these 7 scans, right? So हम लोग एक एक टर्म को ब्रेक करते हैं. तो financial improvement with price action. So let's talk about price action. तो सबसे पहले प्राइस एक्शन को केटर करने के लिए व्हाट वी हैव डन इज वी हैव एडेड दिस स्कैनर क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन. ठीक है. सो इफ एनी स्टॉक विच इज ट्रेडिंग इनटू इट्स क्लोज विद इन विच इज ट्रेडिंग बिटवीन इट्स 52 वीक हाई जोन इज सेट टू बी स्ट्रॉन्ग. अगर कोई भी स्टॉक अपने 52 वीक हाई के जोन में ट्रेड करे, मतलब ऑब्वियसली वो अपने हाई लेवल्स पे ट्रेड करे उस ईयर के, राइट, तो उस ईयर के अगर हाई लेवल्स पे ट्रेड करे, देन इट इज वेरी क्लियर कि वो स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग जोन में है. अब हो सकता है या तो एक अपना वो 52 वीक हाई ब्रेकआउट बना के ऊपर से नीचे आया है, और या वो एक नया 52 वीक हाई बना सकता है. ठीक है, बोथ बोथ ऑफ द पॉसिबिलिटीज आर देयर. बट अनटिल अनलेस वो स्टॉक अपने 52 वीक हाई को ब्रेक नहीं करता, राइट, वो नीचे नहीं आता, टिल देन दैट स्टॉक इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन अ चार्ट बेसिस विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस एक्शन बेसिस, विथ फॉर दैट पीरियड, रेस्पेक्टिव पीरियड. तो विद दैट केस हम लोग का प्राइस एक्शन वाला कंपोनेंट कवर हो गया, राइट. अब आते हैं हम लोग फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट के बेसिस पे, राइट. सो फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट करने के लिए वी नीड टू एनालाइज दोज कंपनीज जिसमें उसका जो फाइनेंशियल्स है वो इंप्रूव हो रहा है. तो फाइनेंशियल इंप्रूव होने का दो कैटेगरी है, वन द एक्चुअल ऑपरेशंस एंड द सेकंड विच इज द ओवरऑल कैटेगरी. तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द ओवरऑल कैटेगरी. तो उसमें आ जाता है आरओई एंड आरओसीई. मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही समझाया what is ROE and ROCE. ROE is return on equity, which means कि इफ अ कंपनी, अगर किसी कंपनी का 10 लाख का इक्विटी है, तो उस 10 लाख के इक्विटी पे वो कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, एंड क्या वो रिटर्न कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहा है, इज द आरओई इंक्रीजिंग. अगर कोई भी इक्विटी, कोई भी शेयर होल्डर अपनी कंपनी का या कोई भी ओनर अपनी कंपनी का उस कंपनी में तभी तक इन्वेस्टेड रहेगा जब तक उसको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, कंसिस्टेंटली इंप्रूविंग रिटर्न्स मिल रहे हैं, राइट. सेम गोज विद आरओसीई. if a company is investing say 10 lakhs in a project, or if a company is invested 10 lakhs, तो उस 10 lakhs पे वो कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो 10 लाख पे इन्वेस्ट करके भी अगर नेगेटिव रिटर्न जनरेट करेगी, तो दैट इज वेरी बैड. अगर वो हर साल 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करी है, तो 10 लाख पे उसका जो रिटर्न जनरेट हो रहा है, अगर वो इंप्रूव हो रहा है, कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, देन दैट इज सेट टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, राइट. सो इस दो केटर से, इस दो पॉइंट से, आरओई एंड आरओसी से हम लोग ने एक अच्छा खासा ब्रॉड टॉपिक कवर कर लिया, विच आर वेरी टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात आती है. ठीक है. अब हम लोग आते हैं कंपनी के एक्चुअल ऑपरेशन पे. सो यू गाइस मस्ट हैव हर्ड a lot about top line numbers, bottom line numbers, right? Operating profits numbers. So what are those? तो top line होगी sales, quarterly sales. Top line होगी मेरी sales. Bottom line is the net profit, and the operating profit, you can say it EBITDA. So if a company is showing improvement, growth in quarterly, in sales as well, in the quarterly sales as well, EBITDA as well, एंड नेट प्रॉफिट एज वेल, इसका मतलब क्या है कि कंपनी तीनों डोमेन्स में अच्छा ग्रो कर रही है. एंड इसका एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि दी कंपनी इज एक्चुअली ग्रोइंग इन इट्स नंबर्स. कंपनी इज एक्चुअली डूइंग गुड बिजनेस, डूइंग गुड ऑपरेशंस, जनरेटिंग गुड प्रॉफिट्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स एज वेल एंड कंपनी प्रॉफिट्स एज वेल, एंड कंपनी का टर्नओवर काफी अच्छा है एंड वो डे बाई डे ग्रो कर रहा है. सो बेसिकली इसीलिए हम लोग ये तीनों पैरामीटर को साथ में ऐड किया है. आप लोग कई बार मतलब ये सिचुएशन फेस करोगे कि देयर इज अ कंपनी जिसका सेल्स ग्रो कर गया बट एबिटा और नेट प्रॉफिट ग्रो नहीं किया. ठीक है. तो उस केस में उसका क्या मतलब हुआ कि उस कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ा, बट उस कंपनी का एक्सपेंडिचर भी उसके साथ ही बढ़ा, जिसकी वजह से उसका एबिटा नेट प्रॉफिट ग्रो नहीं किया. कई बार ऐसा होता है, ना कंपनी का सेल्स बढ़ा ना कंपनी का एबिटा बढ़ा, बट कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रो ग्रो कर गया.
विच क्लियरली मीन्स कि कंपनी के अंदर या तो कोई फॉल्स रिपोर्टिंग हो रही है या कंपनी ने कोई एक्सेप्शनल इनकम को ऐड किया है जिसकी वजह से उसकी नेट प्रॉफिट बढ़ गई है। ठीक है, कंपनी का एबिटा बढ़ा बट कंपनी का नेट प्रॉफिट ये सब नहीं बढ़ा, सो इट कैन बी अ रेड सिग्नल, इट कैन बी अ ग्रीन सिग्नल। सो अकॉर्डिंगली कई बार क्या होता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कई एडजस्टमेंट्स होते हैं, सो टू कीप अ ग्रीन चेक एंड की कोई भी रेड फ्लैग नहीं हो कंपनी के अंदर, उसको केटर करने के लिए इफ एनी कंपनी क्वालिफाइज ऑल थ्री ऑफ दीज स्कैन्स, दैट इज क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, क्वार्टरली एबिटा ग्रोथ ईयर ऑन ईयर एंड हाई इंक्रीज इन क्वार्टरली सेल्स ईयर ऑन ईयर, which means ki company is doing really well with respect to its operations, with respect to its fundamental and its business in the recent periods। तो उससे हम लोग का पूरा फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट केटर हो गया। बट सबसे लास्ट कैन जो आता है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कंसिस्टेंट कैश फ्रॉम ऑपरेशन। सो इफ अ कंपनी इज एबल टू जनरेट कंसिस्टेंटली पॉजिटिव कैश फ्लो, तभी वो कंपनी आगे जाके अपने बाकी के आगे ऑपरेशंस को, आगे प्रोजेक्ट्स को फंड कर पाएगी, अपने वर्किंग कैपिटल नीड्स को फंड कर पाएगी, राइट। तो इसीलिए कंसिस्टेंटली कैश जनरेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनी ऑफ द कंपनीज, जिससे उसका फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट्स में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आएगा। तो दिस इज हाउ दिस फीफा कॉम्बिनेशन स्कैन वाज क्रिएटेड एंड दिस वाज द कॉन्सेप्ट बिफोर मेकिंग दिस फीफा कॉम्बिनेशन स्कैन। सो मैं आप लोग को अगेन बता रहा हूँ, आप लोग कोई भी कॉम्बिनेशन स्कैन बनाओ, इट इज वेरी गुड कि आप लोग कॉम्बिनेशन स्कैन बना रहे हो, आपका एनालिसिस और बेटर स्ट्रॉन्ग होगा, यू विल बी बेटर एबल टू फिल्टर द स्टॉक्स, right, with strong conviction, but you need to make the right set of combination scans। और मैं आपको एक टेक्निकल चीज बता दूं, आप लोग टोटल में यू कैन मेक 20 डिफरेंट कॉम्बिनेशन स्कैन्स एंड हर एक इंडिविजुअल कॉम्बिनेशन स्कैन्स के अंदर यू कैन ऐड मैक्सिमम ऑफ 10 इंडिविजुअल स्कैन्स। नाउ लेट्स कम डाउन टू द स्टॉक सेक्शन। सो स्टॉक्स के अंदर यू कैन सी मल्टीपल लिस्ट ऑफ स्टॉक्स। तो ये ऑलमोस्ट एकदम स्कैन मॉड्यूल जैसा ही है, यहाँ पे ऑल्सो यू विल गेट दी फिल्टर ऑप्शन, देन वी हैव द डाउनलोड ऑप्शन, देन यहाँ पे मेरा स्टॉक फिल्टर लगाया हुआ है। बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर टू द आउटपुट, let me first tell you about the backtesting। So this importance of backtesting feature comes into real play in the combination scans। For example, if you have made out a combination scan for intraday trading, आपने एक ऐसा कॉम्बिनेशन स्कैन बनाया जिसके बेसिस पे आप उन स्टॉक्स के अंदर आप नेक्स्ट डे में इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। सो उस केस में अगर आपको बैक टेस्टिंग करनी है तो आप कैसे करोगे? फॉर एग्जांपल यू हैव एडेड 5 to 7 स्कैन्स फॉर इंट्राडे फिल्ट्रेशन, आपको वहां पे एक आउटपुट मिल गया, देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो एंड बैक टेस्ट योर कॉम्बिनेशन स्कैन ऑन द प्रीवियस डेट्स, कि प्रीवियस डेट्स पे जो आउटपुट आ रही थी वो नेक्स्ट डे उसके फॉलोइंग डे पे कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर आपको अच्छा खासा मूवमेंट दिख रहा है कि हाँ नेक्स्ट डे उस स्टॉक के अंदर एक इंट्राडे मूवमेंट आ रहा है एंड यू आर एबल टू कैप्चर इट, तो ऑब्वियसली आपकी जो कॉम्बिनेशन स्कैन बनी है वो अच्छी बनी है, और एल्स दैट आउटपुट इज क्रेडिबल। बट इफ यू फील कि नहीं जो आउटपुट आ रही है तो पूरा उल्टा ही हो रहा है, क्योंकि जो भी स्कैन आ रहा है वो उल्टा ही मूव कर रहा है, देन इन दैट केस व्हाट यू नीड टू इज यू नीड टू चेंज द कॉम्बिनेशन स्कैन। आप किसी भी स्कैन में जाके अगर आपको समझ में आता है कि आपको इस स्कैन को हटाना है, देन यू कैन रिमूव इट फ्रॉम ओवर हियर एंड यू कैन ऐड सम अदर स्कैन, एंड फिर आप उसके बेसिस पे वापस से टेस्टिंग कर सकते हो कि उस कॉम्बिनेशन स्कैन का आउटपुट आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वेदर दैट आउटपुट इज वर्किंग और नॉट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं स्टॉक्स पे। तो स्टॉक्स पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कई सारे स्टॉक्स हैं। सो परफेक्ट मैच का मतलब है कोई भी स्टॉक जो सारे के सारे स्कैन्स को क्वालिफाई करता है, उसका मतलब है वो एक परफेक्ट मैच है फॉर दैट रेस्पेक्टिव कॉम्बिनेशन स्कैन। बट उन सारे स्टॉक्स का क्या जो कुछ कुछ मैच नहीं करते, सो फॉर दैट ऑल्सो हम लोग ने ऑलमोस्ट देयर का कॉन्सेप्ट बना के रखा है। ऑलमोस्ट देयर के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ऐसे कई स्टॉक्स मिलेंगे जो 10 में से 8 कॉम्बिनेशन स्कैन क्वालिफाई कर रहे हैं, 9 कॉम्बिनेशन स्कैन क्वालिफाई कर रहे हैं, एक या दो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो स्टॉक्स एक्चुअली बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो बाकी सब में अच्छे से क्वालिफाई कर रहे हैं। सो फॉर दैट केस वी हैव क्रिएटेड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑलमोस्ट देयर। इसके अंदर क्या होता है कि if any stock qualifies more than 75% of the scans, मतलब अगर किसी स्कैन में अगर आपने 4 कॉम्बिनेशन या अगर आपने 10 कॉम्बिनेशन 10 इंडिविजुअल स्कैन ऐड किए एंड अगर कोई भी स्टॉक मोर देन 75% दैट इज 8 स्कैन्स को क्वालिफाई करता है, तब वो यहाँ पे आ जाएगा ऑलमोस्ट देयर सेक्शन में, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द ऑलमोस्ट देयर सेक्शन। बाकी ये जो कॉम्बिनेशन स्कैन है दिस एग्जैक्टली दी सेम मॉड्यूल जैसे स्कैन्स में है, आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो एंड यहाँ पे आप बैक टेस्ट कर सकते हो सेम वे में। और जैसे मैंने आप लोग को बोला आप बैक टेस्ट के थ्रू चेंज कर सकते हो अपने कॉम्बिनेशन स्कैन्स को, एंड अगर आप अलग अलग टाइप के लिए
अलग अलग आप इंट्राडे के लिए अलग कॉम्बिनेशन स्कैन बना सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए अलग कॉम्बिनेशन स्कैन बना सकते हो, एक टेक्नो फंडा कॉम्बिनेशन स्कैन बना सकते हो जिसमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग टेक्निकल्स आप ट्रेड कर सकते हो, या प्रॉपरली आप एक फंडामेंटल बेस स्कैन बना सकते हो कि एकदम फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज का लिस्ट बना सकते हो। तो अकॉर्डिंगली यू कैन मेक डिफरेंट कॉम्बिनेशन स्कैन फॉर डिफरेंट पर्पसेस, एंड उसके साथ ही साथ आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज में आप अपने आप को काम कर सकते हो, अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, so this was all about the my combination scans. So let's have a small Q&A session again. विभूति जी, आपको किसी को भी कॉम्बिनेशन स्कैन बनाना है तो उसको माई कॉम्बिनेशन स्कैन में जाना पड़ेगा, और माई स्टॉकेज में जाना पड़ेगा। माई स्टॉकेज में यहाँ पे आपको माई कॉम्बिनेशन स्कैन का आइकन दिखेगा, यू कैन क्लिक ऑन दिस माई कॉम्बिनेशन स्कैन, एंड फिर आप यहाँ पे जाके उस कॉम्बिनेशन स्कैन में बना सकते हो। प्लीज आप लोग जिन लोग को भी कॉम्बिनेशन स्कैन का पीडीएफ नहीं दिख रहा है, प्लीज यू कैन स्क्रोल अप इन दी चैट बॉक्स एंड यू विल सी दी पीडीएफ। Said Fazalji, you will get the session recording in the YouTube as well, and also you can search the Socket Smart Sessions in the Socket Social, and over there you will get the recording. और जायसवाल विश्वास जी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसा होता है कि अगर कोई भी स्टॉक किसी एक लेवल से बार बार नीचे जाके वापस से पुल बैक कर जा रहा है एंड वो उस लेवल को नहीं तोड़ रहा है, अगर मैं बेसिक सेंस में बताऊं, देन दैट लेवल इज द सपोर्ट लेवल्स। ठीक है, अगर कोई भी स्टॉक बार बार ऊपर जा रहा है एंड किसी एक लेवल से ऊपर टेस्ट करके वो बार बार नीचे आ जा रहा है, देन दैट लेवल इज कंसिडर्ड टू बी द रेजिस्टेंस लेवल। तो आपको अगर किसी भी स्टॉक का सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल जानना है, तो या तो आप खुद मैनुअली चार्ट पे जाके आप वो अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को मार्क कर सकते हो, और एल्स आप चार्ट पे जाके पाइवट पॉइंट्स हो गए, फिबोनाची पॉइंट्स हो गए, आप उनको प्लॉट कर सकते हो जो एक्चुअली एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स की तरह काम करते हैं। अवतार जी, फीफा स्कैन स्टॉकेज में और रेडीली अवेलेबल नहीं है, यू विल हैव टू क्रिएट दैट स्कैन, यू विल हैव टू क्रिएट दैट स्कैन बाय योरसेल्फ। जीतू जी, ओपन इंटरेस्ट इन एफएनओ स्कैन्स। सो बेसिकली एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जैसे कैश मार्केटिंग के अंदर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट होता है, राइट, वॉल्यूम एंड डिलीवरी का, वैसे ही एफएनओ डेरिवेटिव्स के अंदर ओपन इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट होता है। अगर इफ अगर कोई भी ट्रेडर अगर फ्यूचर्स किसी स्टॉक का अगर एक लॉट लेता है, देन दैट ट्रेड इज कंसिडर्ड टू बी वन ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, एंड जब तक वो ओपन इंटरेस्ट वो ट्रेडर अपना जो ट्रेड है उसको स्क्वायर ऑफ नहीं कर देता, तब तक उसका एक ओपन इंटरेस्ट माना जाता है। ठीक है, विभूति जी, आपको कॉम्बिनेशन स्कैन बनाने के लिए माई स्टॉकेज में जाके माई कॉम्बिनेशन स्कैन के अंदर जाके कॉम्बिनेशन स्कैन बनाना पड़ेगा। और सुमित्रा भट्टाचार्य जी, मैं वापस से एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कॉम्बिनेशन स्कैन कैसे बनाना है। आप लोगों को माई स्टॉकेज में जाना है, माई कॉम्बिनेशन स्कैन पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड कॉम्बिनेशन स्कैन के अंदर आपको क्लिक करना है। ऐड कॉम्बिनेशन स्कैन में जाके आपको कुछ भी नाम देना है, फॉर एग्जांपल इंट्राडे, अगर आपको इंट्राडे का ट्रेडिंग करना है, इंट्राडे आपने ऐड कर दिया, इंट्राडे के नाम से आपके कॉम्बिनेशन स्कैन ऐड हो गया। अब यहाँ पे जाके आपको इस ऐड स्कैन के बटन पे क्लिक करना है, एंड आउट ऑफ द लिस्ट की अलग अलग कैटेगरीज की जो स्कैन की लिस्ट है उसके अंदर जाके आपको एक एक स्कैन के अंदर आपको स्टार मार्क करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऑल टाइम ब्रेकआउट स्कैन चाहिए, तो क्लोज एंटरिंग ऑल टाइम हाई जोन, तो ये मैंने स्टार मार्क किया, तो ये स्कैन मेरे कॉम्बिनेशन स्कैन में ऐड हो गया। ठीक है, सुशांत जी प्लीज स्क्रोल चैट बॉक्स में ऊपर में, आपको ऊपर में पीडीएफ शेयर किया हुआ दिख जाएगा, 3 4 बार हम लोग ने शेयर कर दिया है। एंड अगर आपको अगर नहीं मिल रहा पीडीएफ, देन यू कैन प्लीज मेल एट support@stockage.com, एंड आपको मेल सेंड कर दिया जाएगा।
शशि जी, एक्सेल फाइल डाउनलोडेड में उसमें बहुत सारे स्कैन्स के डाउनलोड पीडीएफ में उसका क्लोजिंग प्राइस रहता है, एलटीपी नहीं रहता। बहुत सारे स्टॉक्स स्कैन्स के अंदर आपको क्लोजिंग प्राइस है, एलटीपी आपको मिलेगा, जो क्लोजिंग प्राइस रहता है। बहुत सारे स्कैन्स के डाउनलोड में आपको एलटीपी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे रेलिवेंट नहीं है। विनायक जी, वेयर इज रेवेन्यू स्कैन? यू कैन चेक द रेवेन्यू स्कैन्स इन द फंडामेंटल स्कैन्स में, टर्नओवर स्कैन्स के अंदर। सुजिन प्रेमियम जी, ऑल दी स्कैन्स आर यूडी बेस्ड, रियल टाइम अभी वी डू नॉट हैव द रियल टाइम स्कैन, ऑल दी स्कैन्स आर यूडी बेस्ड। So now let's move forward to the last part, that is the trending stocks. So basically this is the trending stock section. ठीक है? So आप लोग जब ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे आते हो, देन ट्रेंडिंग स्टॉक सेक्शन आप लोग सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, टू कीप इन ट्रैक ऑफ द मार्केट ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, ड्यूरिंग द इंट्राडे मार्केट आवर्स। ठीक है? सो 9 o'clock पे मार्केट चालू होता है, 9 to 9 7 पे प्री मार्केट प्राइसेस चलती है, प्री मार्केट प्राइसेस डिसाइड हो जाती है। ठीक है? प्री मार्केट प्राइसेस सेट एट 9 8 AM। जो प्री मार्केट प्राइसेस सेट होती है वो एट 9 8 AM, दिस ऑल दी प्री मार्केट प्राइसेस गेट रिफ्लेक्टेड ओवर हेयर, जो सेट प्राइस हो चुकी है। तो अगर हम 9 8 AM पे आओगे, तो आपको यहाँ पे ये सेक्शन आपको अपडेटेड मिलेगा कि कौन कौन से गेनर साइड पे है, कौन कौन से लूजर साइड पे है, जो स्टॉक्स है। ठीक है? एंड फ्रॉम 9:15 AM इटसेल्फ, एवरी मिनट, आई एम टेलिंग यू, एवरी मिनट दिस सेक्शन गेट्स अपडेटेड। एवरी मिनट, आपको हर मिनट में आप जब भी इसको अपडेट करोगे, रिफ्रेश करोगे, तब ये लिस्ट अपडेट हो जाएगा। एंड कौन कौन से स्टॉक जो गेनर साइड पे आपको वो लिस्ट मिल जाएंगे, सॉर्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ चेंज परसेंटेज। एंड कौन कौन से स्टॉक लूजर साइड पे आपको लूजर में मिल जाएंगे, सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ चेंज परसेंटेज। आप चाहे तो इसमें अलग से फिल्टर भी लगा सकते हो इंपॉर्टेंस का, एनएससी, बीएससी, एफएनओ, 50 200 500, पीएसयू स्टॉक्स। आप चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हो कि कौन से ऐसे स्टॉक्स, अगर आपको फर्दर कुछ एक्सेल में एनालिसिस करना है, ऐसा कुछ करना है, देन आप उसको डाउनलोड करके और आगे एनालाइज भी कर सकते हो। एंड दिस सेक्शन, लेट मी टेल यू, ये सेक्शन हर मिनट अपडेट होता है। तो ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, ड्यूरिंग द इंट्राडे मार्केट, राइट, दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज पीपल हु सिट फ्रॉम 9:15 to 3:30 ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। ठीक है? अब हम लोग आते हैं वॉल्यूम शॉकर्स पे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि आपको ये सेक्शन में आपको उन स्टॉक्स का पता चलेगा जिसके अंदर सबसे ज्यादा मोमेंटम है, सबसे ज्यादा वोलाटिलिटी और मूवमेंट हो रही है, सबसे ज्यादा एक्टिविटी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, ZF कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम इंडिया लिमिटेड, इस स्टॉक का एवरेज, बाय एवरेज वॉल्यूम आई मीन प्रीवियस 5 डेज का एवरेज वॉल्यूम। सो प्रीवियस 5 डेज का इसका एवरेज वॉल्यूम इज 5623 ओनली। आज इस स्टॉक के अंदर 16,34,000 का वो ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ है, विच इज 290.6x। इस स्टॉक का प्राइस ही 16,000 का है, एंड इस स्टॉक के अंदर 16 लाख का वॉल्यूम हुआ है, एंड ये स्टॉक 6% डिक्लाइन हुआ, विच मीन्स कि इस स्टॉक के अंदर आज सेलिंग प्रेशर ज्यादा था, राइट, इसलिए आज इसके अंदर वॉल्यूम अच्छी खासी हुई है। सेम गोज विद इंडस टावर्स, ग्लैंड फार्मा। अब अगर मैं डेल्टा कॉप का एग्जांपल लूं, ठीक है, डेल्टा कॉप का एवरेज वॉल्यूम हो 65,65,000 प्रीवियस 5 डेज का। आज का इसका वॉल्यूम है 6 crore 27 lakhs, विच इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10x ग्रोथ, एंड ये स्टॉक आज 11% भागा हुआ है। सो आप वॉल्यूम शॉकर्स के थ्रू इंट्राडे स्टॉक्स कैसे पिकअप कर सकते हो? आप ऐसे पिकअप कर सकते हो कि आप जैसे 9:15 पे आए, एंड आप इस सेक्शन को कंटिन्यूसली अपडेट करने लगे। एज सुन एज 9:30 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जब भी कोई भी यहाँ पे एक ऐसा स्टॉक आ रहा है जो अपने, एज सुन, जैसे मैं आपको बताता हूँ, डेल्टा कॉप लिमिटेड के अंदर जैसे ही इसका एवरेज वॉल्यूम क्रॉस हुआ होगा आज के डे में, दैट इज 65,65,516 वॉल्यूम आज का हुआ होगा, वैसे ये स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा। सुन एज आज का वॉल्यूम किसी भी स्टॉक का अपने प्रीवियस पिछले 5 दिन के वॉल्यूम को क्रॉस करेगा, वो एज सुन एज यही पे आ जाएगा। एंड इफ यू सी कि उस स्टॉक के अंदर एक बुलिश मोमेंटम है, दैट इज दैट स्टॉक इज इन ग्रीन, वो ऊपर है, तो ऑब्वियसली हो सकता है उसके अंदर और फॉलो अप बाइंग आए और फर्दर बाइंग आए। एंड अब उस स्टॉक में इंट्राडे में उसको आइडेंटिफाई करके उसके अंदर आप या तो बाई ट्रेड ले सकते हो या तो सेल ट्रेड ले सकते हो, इवेंचुअली सीइंग बोथ दी साइड्स। ठीक है? सो इसके थ्रू, वॉल्यूम शॉकर के थ्रू भी आप कई सारा ट्रेड्स ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन दी वॉल्यूम। सेम गोज फॉर चंबल फर्टिलाइजर, इसका 23 लाख का वॉल्यूम है, एवरेज वॉल्यूम। आज इसके अंदर 2 करोड़ 24 लाख का हुआ, सेम अगेन ऑलमोस्ट 10x जंप। तो ऑब्वियसली खुलते ही तो किसी स्टॉक के अंदर 2 करोड़ 24 लाख का नहीं होगा, ये थ्रू आउट डे का वॉल्यूम है। तो आप जैसे ही इसको ट्रैक रखोगे, हाँ इस स्टॉक के अंदर काफी ज्यादा मोमेंटम आ रहा है, पीपल आर, इसके अंदर एक डिमांड प्रेशर क्रिएट हो रहा है, बाइंग प्रेशर ज्यादा है सेलिंग प्रेशर से, तो ऑब्वियसली इसके अंदर आप बाई करके इंट्राडे कर सकते हो, वाइस वर्सा। Then comes the two very more important sections of 52-week high low and all-time high low.
अगर आपको इंट्राडे में ही पता चल जाए कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिन्होंने अपना एक नया 52 वीक हाई ब्रेक किया है, एक नया 52 वीक हाई बनाया है, या कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिन्होंने अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है, देन व्हाट यू कैन डू इज कि आप इंट्राडे के अंदर ही उन स्टॉक्स को पिक करके उन स्टॉक्स में ट्रेड ले सकते हो, एंड यू वोंट एंड अप बाइंग एट हायर लेवल्स। फॉर एग्जांपल ईआईडी पैरी इंडिया, ठीक है, आज ये स्टॉक 11% भागा हुआ है। अगर हम लोग इसको आइडेंटिफाई करें, जैसे ही स्टॉक ने, इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इस स्टॉक का जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वो लास्ट मंथ का था, विच वॉज 703.75, ठीक है, नहीं एक सेकंड, ये तो लास्ट मंथ का है ना, ठीक है, इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई कल का ही था 750, कल इस स्टॉक ने 750 का ऑल टाइम हाई मारा था। अब आज इस स्टॉक ने 750 के हाई मारने के बाद, वो कल स्टॉक 733 पे क्लोज हुआ था, एंड आज स्टॉक ने ओपन हुआ 735 पे। सो एज सून एज दिस स्टॉक वुड हैव क्रॉस्ड 750 एंड रजिस्टर्ड से 750.50 और 751, एट दैट टाइम ओनली दिस स्टॉक वुड हैव कम ओवर हियर इन दिस सेक्शन। तो ये स्टॉक अगर आप उसी समय ट्रैक रखते हैं कि कौन सा स्टॉक है जिसका जिसने अभी जस्ट एक नया ऑल टाइम हाई मारा है, देन यू कैन एक्चुअली चेक दैट स्टॉक, एंड अगर आपको लगता है कि उस स्टॉक के अंदर एक फर्दर मोमेंटम और आ सकता है, जैसे दिस स्टॉक मूव फ्रॉम 751 टू 833, ठीक है, 750 का 833 मतलब स्टॉक ने 10% का मूव अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई से दिया है, विच वो 750, ठीक है। सो क्लियरली आप इस स्टॉक को आप इंट्राडे में कैच कर सकते थे, आप एक इंट्राडे में अच्छा एक मूव बना सकते थे, एक अच्छा ट्रेड ले सकते थे। सेम गोज फॉर त्रिवेणी इंजीनियरिंग, इस स्टॉक का भी एक नया ऑल टाइम हाई बना विच इज 427, मोस्ट प्रोबेबली कल ही था इसका ऑल टाइम हाई, दैट वाज 396। तो जैसे ही स्टॉक ने अपना 396 का हाई आज तोड़ा होगा इंट्राडे के अंदर, वैसे ही ये स्टॉक यहाँ पे आ चुका होगा, एंड एट दैट मोमेंट इफ यू हैव कॉट द स्टॉक, देन ऑब्वियसली you could have made an intraday entry and booked a good trade in it. And then this is the most visited section, ये वो सारे स्टॉक्स है जिनको सबसे ज्यादा विजिट किया जा रहा है ड्यूरिंग इंट्राडे। So like I said, all time high low and 52 week high low is very important for those people who are into intraday trading, और आप खाली इसे इंट्राडे नहीं, आप इसे स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, या बीटीएसटी कर सकते हो, कि अगर आपको यहाँ पे कोई एक अच्छा स्टॉक दिखा जो काफी टाइम बाद एक 52 वीक हाई ब्रेकआउट दिया है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया है, यू कैन चेक दैट गोइंग इनसाइड दैट स्टॉक। तो फिर उस केस में यू कैन ऑल्सो कैरी दैट पोजिशन फॉर फर्दर ट्रेडिंग डेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऑल टाइम हाई पे आया एंड आपको लग रहा है कि कोई स्टॉक है जो काफी टाइम बाद वो दिया ब्रेकआउट दिया है, फॉर एग्जाम्पल ओरेकल में मैं चेक करता हूँ, आई डोंट नो, तो आप ओरेकल में जाओगे, किसी भी स्टॉक में जाओगे, आप उसके टेक्निकल्स में जाओगे, यू कैन गो इन टू द लेवल सेक्शन, एंड देन यू कैन क्लिक ऑन द 80 ऑल टाइम हाई। तो जैसे आप यहाँ पे चेक कर रहे हो तो इस स्टॉक में आज का ऑल टाइम हाई आ चुका है, अगर आप इंट्राडे में देखोगे तो वो नहीं आएगा, वो उसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो था उसका डेटा आएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हो कि कितना टाइम बाद किसी स्टॉक ने ऑल टाइम हाई मारा है, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन ट्रेड, you can either make a intraday trade or you can make a short term trade or BTST or short swing trade, or you can make a long term trade as well if you find that that stock has given a all time breakout of 52 week high breakout after a long time. सो दिस वाज ऑल अबाउट दी ट्रेंडिंग स्टॉक्स। ट्रेंडिंग स्टॉक बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये इंट्राडे में हर मिनट अपडेट होता है, दिस सेक्शन इज गेटिंग मिनट अपडेटेड एवरी मिनट। अगर आप मोबाइल के थ्रू सर्फ कर रहे हो तो मोबाइल में यू जस्ट नीड टू पुल टू रिफ्रेश, एंड इफ यू आर सर्फिंग थ्रू वेब प्लेटफॉर्म देन यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दी रीलोड बटन और रिफ्रेश बटन टू रिफ्रेश दी सेक्शन, राइट। सो मैं आप लोग को इनिशियली बता रहा था कि कैसे स्टॉकेज स्कैन्स, माई कॉम्बिनेशन स्कैन्स एंड ट्रेंडिंग स्टॉक्स को साथ में यूज करके हाउ वी कैन यूज दीज ऑल थ्री इन सिंक टुगेदर टू ड्राइव सम एज इन आर एनालिसिस। सो व्हाट यू ऑल नीड टू डू इज, ये हम लोग का एक पुराना चेक किया हुआ एनालिसिस है फॉर एंड फ्रॉम अ फीडबैक फ्रॉम आर ओल्ड यूजर जो हम लोग को ऐप को कई सारा टाइम से यूज कर रहे हैं। सो व्हाट वी हैव एनालाइज दैट कि इट इज नॉट पॉसिबल for any retail investor or trader out there to track and analyze all those 5,000 stocks during the market hours, ठीक है। many people end up doing mistakes because they are doing the analysis during the market itself, जो कि सही नहीं है, right। तो उस केस में आप लोग को क्या करना होगा ना, यू व्हाट यू नीड टू डू इज कि यू नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड बिफोर द मार्केट स्टार्ट्स। आपका एनालिसिस पहले ही हो जाना चाहिए। तो इन दैट केस व्हाट यू नीड टू डू इज कि
प्रीवियस डे, जैसे फॉर एग्जांपल आज 19th है, आज 19th का ईओडी हो चुका अगर है, तो आप लोग के पास मैसेज चला जाएगा कि हाँ 19 का पुश नोटिफिकेशन जा चुका है एंड आपके सारे के सारे स्कैन्स प्रोसेस हो चुके हैं. Then as soon as you receive the message the previous day, what you need to do is you need to come to the application, you need to go to the scan section first, एंड देन यू नीड टू चेक आउट योर फेवरेट स्कैन्स कि आपको कौन कौन से स्कैन्स में आपको दिलचस्पी है, एंड यू नीड टू चेक कि उन स्कैन्स के अंदर क्या आउटपुट आ रहा है. एंड इफ यू कैन फाइंड सम स्टॉक्स और इफ यू कैन फिल्टर आउट सम स्टॉक्स, से 1 to 2 स्टॉक्स और 3 to 4 स्टॉक्स फ्रॉम योर फेवरेट स्कैन्स एज वेल, कि आपने कोई ब्रेकआउट स्कैन्स देखे, क्रॉसओवर स्कैन्स देखे, या टर्न अराउंड स्टोरी स्कैन्स देखे, रिजल्ट अगर जब रिजल्ट पीरियड चलता है देन यू कैन चेक आउट द रिजल्ट पीरियड स्कैन्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स के स्कैन्स की कौन से स्टॉक थे जिसके अंदर एक अच्छा खासा रिजल्ट आया है. ठीक है, तो आपने कोई वैसे स्कैन देखे जिसके बेसिस पे आपने 3-4 स्टॉक फिल्टर कर लिए. ओके, देन यू नीड टू गो टू योर माई कॉम्बिनेशन स्कैन, जहाँ पे माई कॉम्बिनेशन स्कैन में आपका जो भी कॉम्बिनेशन स्कैन बनाया हुआ है आप उसके आउटपुट को देख रहे हो, एंड उसमें से आप और 2-3 स्टॉक को और फिल्टर कर रहे हो. राइट, देन यू हैव बेसिकली मेड अ लिस्ट ऑफ 7 to 8 और 7 to 10 स्टॉक्स फॉर द अपकमिंग डे. अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हो, या अगर आपको उस 7 to 10 स्टॉक्स में अगर आपको नेक्स्ट डे कोई स्विंग ट्रेडिंग करनी है या कोई पोजीशन बनाना है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, सो यू हैव मेड दैट लिस्ट ऑफ 7 to 10 स्टॉक्स. अगर आपको चार्ट्स का थोड़ा आइडिया है, टेक्निकल्स का थोड़ा आइडिया है, तो आप अकॉर्डिंगली अपने लेवल्स भी मार्क कर सकते हो कि हाँ मेरे को इन लेवल्स पे ट्रेड करना है या ऐसे ट्रेड करना है, या ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा, रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी होगा फॉर दीज रेस्पेक्टिव स्टॉक्स. आपने बेसिकली 7 to 10 स्टॉक्स का लिस्ट बना लिया कि हाँ इस 7 to 10 स्टॉक्स के अंदर आपको कल एक मोमेंटम मिलेगा, उसके बेसिस पे आप ट्रेड करोगे, इधर इंट्राडे, बीटीएसटी, स्विंग, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, एनीथिंग. ठीक है, अब व्हाट यू नीड टू डू इज कि जैसे ही 9-8 AM पे जब मार्केट्स अपना प्री मार्केट प्राइसेस सेट कर लेती है, तब आके आपको चेक करना है कि वो उन 7 to 8 स्टॉक्स कहाँ पे है. वो आपको ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे आना है, या आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, या आप ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आके देख सकते हो कि क्या टॉप स्टॉक्स के अंदर वो ऑलरेडी है, क्या आपके वो अगर वो टॉप 500 निफ्टी 500 के स्टॉक्स है, तो क्या वो मेजर स्टॉक्स की लिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है, या उसके अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम है, इधर इट इज ऑन द ग्रीन साइड और इट इज ऑन द रेड साइड. अगर आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंगली इफ दो स्टॉक्स आर परफॉर्मिंग वेल इन योर डायरेक्शन, देन आपको कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा कि यस यू हैव ऑलरेडी प्री आइडेंटिफाइड दो स्टॉक्स. आपको उन स्टॉक्स का लेवल ऑलरेडी पता है, आपको स्टॉक का नाम पता है कि आपको किस स्टॉक में ट्रेड करना है. सो ऑल यू नीड टू डू इज कि जैसे ही 9:15 पे मार्केट स्टार्ट होती है, देन यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दो 7 to 8 स्टॉक्स. ठीक है, इनिशियली ड्यूरिंग द मार्केट यू जस्ट नीड टू फोकस ड्यूरिंग ऑन दो 7 to 8 स्टॉक्स. अगर आपको उन 7 to 8 स्टॉक्स के अंदर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, या वो 7 to 8 स्टॉक्स में कोई दो, इफ देयर आर 2 to 3 स्टॉक्स ऑलरेडी अवेलेबल इन दिस लिस्ट एंड दैट आर गेनिंग अ मोमेंटम, तब उस 2-3 स्टॉक के अंदर ट्रेड ले सकते हो व्हाट्स एवर योर स्ट्रैटेजी इज, तब उसके अंदर कर सकते हो. एंड इफ यू डोंट फाइंड any opportunity in those 7 to 8 stocks, then you can wait for some opportunities that you can track from volume shockers or 52 week high low all time high low tabs, and फिर accordingly आप उसके अंदर आगे का ट्रेड दे सकते हो. So it is better to be pre-planned rather than making your analysis or doing your analysis during the market as itself. इससे आपका 3 बेनिफिट होगा. पहला, आप प्री प्लान रहोगे तो यू वोंट, आप हड़बड़ी में कुछ नहीं करोगे, यू वोंट गेट कंफ्यूज ड्यूरिंग द मार्केट आज, आप बेटर काम रहोगे एंड योर डिसीजन मेकिंग स्किल्स विल बी मच मोर बेटर. सेकंड, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा फालतू के स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने में. राइट, आपको पता है आपको कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना है. थर्ड, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी ज्यादा बेटर होगा क्योंकि आप पहले से आइडेंटिफाई करके रखे हो कि आपको किन लेवल्स पे ट्रेड करना है. राइट, सो इट इज ओनली बेनिफिट फॉर ऑल ऑफ यू अगर आप लोग ऐसा कुछ पैटर्न फॉलो करते हैं. आई एम नॉट सेइंग यू टू एग्जैक्टली फॉलो द सेम पैटर्न, बट अगर आप लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अगर ऐसा ही कुछ पैटर्न फॉलो करते हो, एंड इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड बिफोर द मार्केट इटसेल्फ, देन ऑब्वियसली आप लोग देखोगे आपका जो एनालिसिस है एंड जो कन्विक्शन है वो ज्यादा बेटर स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, तो अभी हम लोग लास्ट राउंड ऑफ क्यू एन ए सेशन देखते हैं जिसके अंदर वी कैन चेक, आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ द क्वेरीज. निगम जी, मार्केट ब्रेथ के लिए एक अलग से स्मार्ट सेशन होता है, यू कैन प्लीज ज्वाइन दैट रेस्पेक्टिव मार्केट सेशन, स्मार्ट सेशन. और जीतू जी, हम लोग का प्रमोटर का शेयर होल्डिंग में हम लोग के ऑलरेडी सेट पैरामीटर्स लगाए हुए हैं. फॉर एग्जांपल अगर 70% के ऊपर अगर किसी
स्टॉक का शेयर होल्डिंग है, देन वहां पे आपको मिल जाएगा। यू कैनॉट अप्लाई योर कस्टम पैरामीटर्स, बट हम लोग के जैसे प्रमोटर ये सब के अंदर हम लोग के खुद की कस्टम मतलब खुद की सेट पैरामीटर्स लगाई हुई है, देन यू कैन चेक दैट। और सुजन जी, हम लोग का जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स है दैट इज रियल टाइम, दैट इज अपडेटेड एवरी मिनट। जो स्कैन है वो अभी यूडी लेवल पे है। श्रीनी जी, करेंटली वी डू नॉट प्रोवाइड द ऑप्शन ऑफ सॉर्टिंग द डिफरेंट कॉलम्स इन ट्रेंडिंग स्टॉक्स। गौतम जी, आपको वॉल्यूम शॉकर पेज पे जाने के लिए यू नीड टू गो टू दी ट्रेंडिंग स्टॉक सेक्शन, एंड ट्रेंडिंग स्टॉक्स के अंदर आपको वॉल्यूम शॉकर्स मिल जाएगा सेकंड टैब में। बलजी पल्ली जी, आपको ट्रेंडिंग स्टॉक मोबाइल ऐप पे चाहिए तो आप मोबाइल ऐप बस ओपन करो, एंड जो स्टॉकेज का जो होम स्क्रीन है, सबसे पहला होम स्क्रीन है, उसी के अंदर एक्सप्लोर सेक्शन के अंदर ही आपको ट्रेंडिंग स्टॉक दिख जाएगा। और चौधरी जी, यस, वी कैन मेक अ लिंक। अगर आप ट्रेंडिंग स्टॉक से फीफा स्कैन को क्वालिफाई करना चाहते हो, तो फीफा स्कैन में वही सारे स्टॉक्स आएंगे जिनका फाइनेंशियल इंप्रूव हो रहा है एंड जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, दैट इज अपने 52 वीक हाई जोन में। तो अगर उसमें से कोई स्टॉक ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आता है, तो आपको उस स्टॉक का फंडामेंटल के बारे में चिंता करने का दरकार नहीं। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ दो स्टॉक, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने चेक कर चुका है वाया द फीफा स्कैन। तो उसमें ऑब्वियसली वो स्टॉक्स आएंगे जो प्राइस एक्शन में भी स्ट्रांग है। तो अगर कोई भी स्टॉक फीफा स्कैन का ट्रेंडिंग स्टॉक में आ रहा है, मतलब उसके अंदर फंडामेंटल तो स्ट्रांग है ही, एंड ऑब्वियसली उसका प्राइस एक्शन और बेटर हो रहा है और स्ट्रांग हो रहा है। एल्टन कोटिनो जी, यू कैन एनालाइज दी बाइंग और सेलिंग वॉल्यूम इज मोर और लेस। इससे आपको आपको जो टाइम परसेंटेज आपको जो दिख रहा है ग्रोथ, आप उसके थ्रू चेक कर सकते हो। ये जो टाइम्स है, अगर ये जितना ग्रोथ है जितना ज्यादा है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि वॉल्यूम बाइंग वॉल्यूम है कि सेलिंग वॉल्यूम है, वो कितना ज्यादा है। और दीपेश गुप्ता जी, currently we do not have this scan open equal to 15-minute chart intraday. I have noted on your request and will surely look into it for our future incorporations. बसंत जी, अगर आप मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर रहे हो, देन यू जस्ट नीड टू पुल दी स्क्रीन, पुल टू रिफ्रेश, तो आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा। अगर आपको आप वेब से सर्व करो, देन यू कैन जस्ट यूज योर रिलोड बटन ऑफ योर ब्राउजर। और शिनी जी, लाइक आई सेड, करेंटली वी डू नॉट प्रोवाइड सॉर्टिंग ऑप्शन। शमित जी, RS55 का नाम जो है इन दी चार्ट इंडिकेटर सेटिंग लिस्ट, उसके अंदर आपको वो मिलेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ बेंचमार्क इंडेक्स RSMKT एंड RSSEC इज फॉर दी RS मार्केट बेंचमार्क इंडेक्स, एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ सेक्टोरल इंडेक्स RSMKT एंड RS सेक्टोरल, ये आपको मिल जाएगा RS55 के लिए। सौमित्रा जी, थैंक यू फॉर योर फीडबैक एंड फॉर एवरीवन फॉर योर फीडबैक। मैं आई विल ट्राई टू बी मच मोर स्लोअर in the upcoming sessions. और श्रीनी जी, रिफ्रेश एंड डेवलप ऑफ द ट्रेंडिंग सोर्सेज, इट इज अपडेटेड एवरी मिनट। जो प्राइसेस है वो हर मिनट अपडेट होती है, प्राइसेस एंड द वॉल्यूम, सो यू कैन रिफ्रेश इट अकॉर्डिंगली। RSSEC एंड RS मार्केट के अंदर डिफरेंस ये है कि RSSEC फॉर इज इट इज फॉर सेक्टोरल इंडेक्स, एंड RSMKT इज फॉर बेंचमार्क इंडेक्स। Jaydevan ji, EMA scans are already available. 20 EMA scans are already available. I am not sure about the 5 EMA scans, but 20 EMA scans and crossovers are already available. I guess I've tried to solve and reply to all of the queries, but still अगर आप लोग की कोई भी query रह गई हो, then please reach out to the support team at support@stockage.com, और आप WhatsApp भी कर सकते हो, या आप हम लोग को सोशल मीडिया के थ्रू भी आप लोग को रीच आउट कर सकते हो। अगर कोई भी क्वेरी रह गई हो या कोई भी इशू हो, या इफ यू वांट टू मेक एनी फीचर रिक्वेस्ट कि हम लोग के प्लेटफॉर्म पे आपको चाहिए, देन प्लीज डू रीच आउट टू अस वाया सपोर्ट टीम, एंड विल श्योरली लुक इनटू इट कि हम लोग उसको कैसे सॉल्व करें, आगे जाके हम लोग कैसे इनकॉर्पोरेट करें।
सो आई होप यू ऑल हैड अ गुड सेशन। मैं आप लोगों को कुछ भी लर्निंग प्रोवाइड कर पाया, एंड अगर आप लोग उसे सीखे हो, देन आई विल बी लाइक वेरी ग्रेटफुल, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन अगेन।